Are we waiting for more participants or can we start? Assalamu alaikum everyone. This is Samreen Askar from APSACS Secretariat. I welcome you all for today's session on co-curricular activities and holistic development. Today's session is focused on the revised policies and procedures for the academic session 2023-24 on the forms that we have developed for data collection. It is also regarding the registers that have been updated for CCA's house registers and APSACS CCA clubs and makerspace program registers. So we'll discuss the updation in the programs, which programs we are offering for this year, if there are any changes in the programs, how you have to maintain the data, and how to go about all the co-curricular activities for junior, middle, and senior level. Besides me sitting, Ms. Humaira Abid Zaka, she is in charge of co-curricular and holistic development programs. She's briefly going to explain you about the holistic development programs. Then she'll discuss the data template that has been developed on AIS for data collection of various CCAs in both internal and external. So over to Ms. Humaira Abid, and lately I'll discuss about the CCA registers. Thank you so much, Samreen. I'm Humaira Abid Zaka, and as Samreen has already told you, that I'm looking after the co-curricular activities in the holistic development program. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Basically, Department of Research and Holistic Development provides high standard enrichment programs for students' holistic development. The department operates in accordance with high quality academic standards. Therefore, all functions of the department are aligned with the directives of the Chief of the Army Staff and National Education Policy and international benchmarks. APSACS, in APSACS, Department of Research and Holistic Development Department is responsible for looking after the holistic development programs, which are meant for holistic development of the students. We are running many programs for to meet this end, and a few of the programs that are run under our department are co-curricular activities, which include both APSACS, which we have suggested in the academic calendar. And then we have external organizations also, co-curricular activities, values education program, academics and hidden curriculum. And then we have environment sustainability, which includes tree plantation, tiny forests, solid waste management, and water conservation. We have community service, where students visit to local community hospitals, orphanages, awareness walks, and awareness talks. Then we have Proud Pakistani, where we celebrate all the national days and anything that is related to Pakistan. Financial literacy program, in which we have collaborated with the State Bank of Pakistan. In addition to that, we have anti-drug awareness program, crisis management, bullying prevention, cyber safety. All these programs are basically aimed at providing holistic development of students. One thing the schools need to ensure is, while implementing these programs, they need to ensure that they are focusing on the civic awareness as well. We do not want that students should. There are a few messages I can see which are saying they can't hear us. Please raise your hand if you can hear us. And everyone, please turn on your camera. Gigi, if you are unable to hear us, please check your audio settings. There must be some issue with your audio settings, please, because most of the people can hear us. Thank you. G. What I was telling you, that the aim of all these programs is that we need to create civic awareness among our students. Because, you know, we do not want that just for the sake of it or just for the filling of records, we are doing all these activities and we are running these programs. The basic aim, once you are implementing these programs, you need to focus on the civic awareness of the students, that basically they feel obligatory that they need to, whether teachers are looking at them or whether other things. For instance,
solid waste management का program है. Just because they are told that they need to pick up the litter or switch off the lights, not for the sake of it, they need to indulge themselves in these things, and they feel that it is their moral responsibility of doing all these things. For this session, we have revised many books. The books that have been revised are APSACS Co-Curricular and Enrichment Activities Forecast booklet. Previously, this booklet was given with dates, and we realized, and also it was shared by you, that it is difficult to run those activities on the same day. So for now, convenience sake, we have done away with the dates as per the school's convenience. They can have the activities on their own convenient dates. And the name of the book has also changed. Now it's APSACS Co-Curricular Activities and Holistic Development Program. And can you share the? So outlook of this book is like this now. It's completely changed. It's uploaded on the website as well, and I hope you have downloaded and gone through all the instructions so that you are able to implement the program in full zeal and enthusiasm. Another book that has been revised is the Solid Waste Management and Water Preservation book. Handbook that has also been revised, and it's uploaded on the book. You need to go through the book, the section heads, the CCA coordinators, they need to go through the book so that they can understand and they're able to implement the program, efficiently. Then there was a suggestion from most of the regions that 0 period should be again allocated. So as per your desire, we have again allocated 0 period. That will be on Wednesday. And it has been mentioned in the academic calendar also, that has been shared with you from classes 1 to HSSC level. Now the activities that have been mentioned for class 9 to 9, 10 and HSSC level, the different date slots have been given. But for your convenience, you can merge the dates, you can hold the competitions together. It will be convenient for you. So you can do that as well. Then inter-house and mega competitions have been reintroduced. They never actually finished, but it was again school's discretion if they wanted to have it, if they had the infrastructure, if they had all the monetary resources to hold those mega competitions, they were free to do so. But it has been again allocated again from this year. However, we got feedback that they should be explicitly mentioned in the academic calendar, so we have done that. CCS and house registers have been updated, and CCA clubs and makerspace program register has been introduced. After this, Samreen will be giving you the details about how to fill in those and how to maintain the record in those registers. Another change this year is that CCA completion form has been uploaded on AIS. I will be giving you the details once Zain will be sharing the screen, not now, afterwards. Okay? So this form will give the department access lots of different data. Usually once we used to have the data once we used to visit for evaluations, but at times once the GHQ wanted something, they needed the data. So for this, it has made convenient for us as well that we can go on AIS and collect all the related and relevant and up-to-date data whenever we require. The role of CCA coordinator is very important, as this is the person who has to coordinate with the principal, with the management, the house in charges, club in charges, teachers, and the students. So we suggest that the number of periods allocated to CCA coordinators should be reduced, and they should not be more than 14 to 16 periods, because she has to do a lot of management and she has to maintain records. So it is suggested that don't burden them with academic classes so much that they are unable to
maintain that thing. CCA coordinators, we have again, now there will be only one CCA coordinator for the whole school who will be maintaining the record. Previous practices of having CCA coordinators, junior, senior, middle, separate, and then they used to have one whole school CCA coordinator as well. That practice should be discontinued. Now there will be only one CCA coordinator who will be maintaining the records of the whole school. If the school's strength, student strength is more than 2,500, then they are allowed to have assistant CCA coordinator with them who can help the CCA coordinator, and his or her workload should also be reduced to 16 to 18 periods so that she can help out the CCA coordinator. As all the competitions and activities are to be conducted in houses, the house in charges must liaison with the CCA coordinator at every stage. And for complete guidelines, you need to go through the updated book so that you understand how that has to be implemented. The house system has been streamlined. For junior and middle school, every competition is conducted in the respective houses. So the winner house, whoever is the winner, will be allocated 1 point. And for senior school, mega competitions are interregional. So the winner will be getting 5 points if whichever house wins. And at the end of the session, all those points will be calculated and winner house will be declared. The house in charges are responsible for chairing house meetings, conducting student council elections, conducting all activities in their houses, communicating house matters with principals and section heads. Emphasis should be given on CCAs and makerspace program as well. Now, this book, basically, all CCA and makerspace activities are also included in the same APSACS holistic development book. Previously, we used to have separate makerspace and CCA clubs booklet. But this time, we have one book in which we have compiled all the things together for convenience. We have suggested many clubs for makerspace clubs and CCA clubs, but we recommend that at least 5 clubs should be run at a time. If the school has the capacity to run more than 5 clubs, they're most welcome. If they have the resources and if they can tie up with everything, they're free to do that. But make sure that at least 5 clubs are run. Do not limit those to less than 5, because then you will not be giving much option for the students, because these days students have varied interests. So the more variety you will be giving, they will have they can choose from those clubs. Same goes for the makerspace clubs. We have again given around 10 to 12 clubs we have suggested, but as per the convenience, as per the circumstances, as per the resources of the school, you can have your own clubs as well. Other than that, these are just suggestions. Then obviously 1 period is not enough to carry out full-fledged events. So what you can do is you can have all the planning and meetings done in the CCA period, and actual implementation of that, whatever program you are trying to do, you can do after school or you can do on the training Saturday. CCA club and makerspace in charges must coordinate and inform CCA coordinator of all the workings of the clubs. A separate register will be held by the CCA coordinator, so each in charge can write the relevant information. It is just one register that the school has to maintain for all clubs and not any separate registers. Now I will share the screen with you that how you have to fill CCA records on AIS. So please can you check? This username and password will be done by your DBA. They will be sharing it with the CCA coordinators.
You will put in this password and ID, sign in on AIS portal. Here you will be having home and then CCA. You will click on CCA, you will be getting co-curricular activities. This is a very user-friendly form, and once you'll be using it, you will realize that you know how convenient it is to add the information on this. First of all, you're going to click on the select term. You'll get the option of first term, second term, whatever activity, if it is in the first term, you click first term. Then you have, in the select first term. Now there are some activities that are in the first term for cold region, and maybe they will come in the second term for the cold regions. So once, even if you're doing it in the second term, but the activity is actually mentioned in the first term, you need to choose first term, and then the drop down menu will be suggesting those activities that were held. It doesn't really matter if you have done it in the second term, but once you're filling, you will need to select first term. Then you need to select activity type, which is internal and external. If it is internal, internal are all those activities that have been suggested by APSACS in your academic calendar. And external activities are all those that from time to time we also share. जिस तरह आपके कैंगू कॉम्पिटिशन्स हो गए, ICAT हो गया, फेडरल बोर्ड के हो गए, these are all your external activities. Now, another thing I want to clarify is that your focus should be mainly on internal activities. We have suggested, I think, around 25 plus external activities. We do not expect that you do all those 25 activities. Aapko just pick and choose which is most convenient to you. All these we have given in the exhaustive basis because every school has a different set of scenario and they prefer certain external events. So this is the exhaustive list that we have prepared with your input, with all the regions input that they were actually doing. So for you, don't be, the session is so short that we are unable to, we are unable to do so many activities. So you just have to pick and choose your convenient external activities from the list that we have provided. Then you are, once you've selected internal, then you select activity. You will get the drop down menu, and we have given you a list of activities. Whichever activity you have done, you will choose and select and click on that. Then a brief detail of the activity you need to give, how you did the activity, whether it was a competition or whether it was a morning assembly or poster competition or walk. You just need to, give a very brief detail about this. Feedback, it is optional, whatever you want to give about the activity that you have performed, you just need to, that's optional. Then you have to select the date of the activity. Once you are selecting the date of the activity, now if you have done 14th August celebrations, you did it on 15th. And you filled this form on maybe 17, you are going to mention the date that the activity was held, not the date you entered the data. Okay, so please make sure once you are selecting the date for the activity, it has to be the date that you actually perform that duty. Number of students, again, you're going to mention how many students were there to participate. Now, if you're doing morning assembly or some walk, then there will be no position holders. This position holders is basically once if you are holding competition in school quiz competition or for external competitions, if you're doing that, you need to enter the position holders also. Again, very conveniently, you just select the class, whether it's 8 or 7 or 5, then you select the section. Then you select student name. Once you click on student name, all the list of that class or section will be in front of you, and you just click on the child who got the position.
Then you can see add new row, which is for, there can be more than one winners, first, second, third, or maybe there were two first winners. So you can click on the add row and you will be given provision for entering more than one entry. Once, please go through all the data that you have filled. When you are sure that whatever you fill, you don't need to edit, you will click on the Save Data button and all the data will be saved. I would like to add one thing that when you have to enter the number of students participated, if some activity is done in morning assembly, so you will not only mention the name of the participants who were on the stage. Because जो बच्चे बोल रहे हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस तो सबके लिए क्रिएट हो रही है ना, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं असेंबली। तो आपको पूरी एक्टिविटी में जितने भी बच्चे इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे आपको उन बच्चों को वो करेंगे, मेंशन करेंगे उनका कि अगर अवेयरनेस थी कुछ बच्चों ने दी है या किसी टीचर ने मॉर्निंग असेंबली में कोई लेक्चर दिया है, तो अगर उसमें जूनियर स्कूल सारा का सारा इन्वॉल्व था, सारा का सारा ग्राउंड में प्रेजेंट था, तो आप उसको लिखेंगे कि number of students according to that strength. So it's not just about the students who were on the stage and who participated and who presented, but this number is also for the students who were listening, who were attending the awareness session or who have been participated in any discussion. So this is how it is. तो थोड़ा सा मुझे इस पे मैंने कहा मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि आपने ये बड़ा केयरफुली डेटा एंटर करना है कि 5-6 बच्चों का नहीं, अगर सारा स्कूल इन्वॉल्व है तो आप उनको, अगर होल स्कूल है उस एक्टिविटी में तो बेशक इसको पूरा अपनी स्कूल स्ट्रेंथ देखें इसके अंदर। Once you've saved the data and you want to have a look of how many entries you have done, so this is how you will go on that, and all the activities that you have mentioned with dates and everything, they will appear in front of you. If you want to edit any data, then the option is there. Yeah, delete the. ये delete का आपका साथ ही बटन है, इसको you will आप बताएं। If you want to delete, edit any data, you have to delete the row first, and then you will be able to enter it again. We have entered this data. You can see हमने first हम select किया था activity type में करना था, पाकिस्तान डे की activity थी, ये सारा आपके पास data आ गया है। If you feel कि आपने students participated गलत enter कर दिया, for example, ये 1000 था, आपने 10 enter कर दिया, you have to delete it, and then you will enter it again to आपको। And you have to re-enter the whole data हाँ again. जी। सारा blank। वो यही सारी information आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। So you have to be very careful while when you are entering the data. You have to double check it before pressing the save data button. इसलिए कि there is no edit option. If you have to, you actually have to delete everything, the entry, the whole date, and you will have to again, fill in the complete data if you have done even one mistake. Now over to Samreen for CCA registers and house registers, makerspace registers. Thank you so much, Ms. Humaira. I hope everything is clear up till now. If you have any queries, you can write in the chat box. We are going to entertain all the queries by the end of the session. Or if you're joining through the YouTube link, you can also write the query in the comment box. So, जितनी भी आपकी अभी तक कोई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए या कुछ आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, अपने पास नोट डाउन करते जाएं। ये सेशन हम करवा ही इसलिए रहे हैं ताकि सेशन के स्टार्ट में, एकेडमिक सेशन के स्टार्ट में आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया मिल जाए दैट हाउ टू गो अबाउट ऑल द co-curricular activities, how to conduct them, how to keep the data, how to maintain the data. क्योंकि जब evaluation टीम्स भी जाती हैं तो उनको भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप लोगों का भी उस तरह से डेटा प्रॉपर मेंटेन नहीं होता। तो अब ये चीजें हमने आपके लिए और अपने लिए सबके लिए स्ट्रीमलाइन की हैं ताकि हमारे पास भी एक पिक्चर साथ साथ आ रही हो और आप लोग जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें, वन क्लिक पे मेंटेन कर सकें। CCA रजिस्टर्स हमने डिटेल डेटा के लिए दिए हैं और ये हमने इसलिए दिया ताकि हमारे पास हम AIS पे किसी वक्त भी रिव्यू करें अगर हमें कुछ चाहिए। I would, before I start with the registers, मुझे कुछ थोड़ी बहुत आपको बातें बतानी थी regarding SSC and HSSC। आप सबको पता होगा that the exam schedule for the next year जो बोर्ड एग्जाम है वो उनका डेट शीट रिवाइज हुई है, उन्होंने जो डेट्स दी हैं उसमें मैट्रिक के एग्जाम्स जो हैं वो
और मार्च में एक्सपेक्टेड हैं, एंड फॉर HSSC दे विल बी कंडक्टेड इन अप्रैल 2024. सो अभी जो हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे भी डिस्कशन हुई, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड द लेटर. आई होप आप सबको मिल गया होगा वो लेटर, जिसमें हमने दिया हुआ था कि फॉर SSC and HSSC CCA particularly mega competitions for the second term they are not mandatory. वो इसी वजह से कि टाइम कम है, और इट डजंट मीन कि हम लोग इस साल CCS को कोई वेटेज नहीं दे रहे या उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जस्ट टू रिलैक्स द स्टूडेंट्स एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टीचर्स अ बिट, कि वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जाए कि हमने एग्जॉस्टिव किस्म का आपको को-करिकुलर एक्टिविटीज का प्लान भी दिया हुआ है. इसके साथ साथ एकेडमिक्स का जो स्केड्यूल है वो भी इस साल काफी टाइट हो गया है सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको हमने इस साल मैंडेटरी नहीं किया. बाय नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा उसी तरीके से लेके चलेंगे जो कि मैंडेटरी आपके कॉम्पिटिशन है. हमने इस साल मेगा कॉम्पिटिशन री इंट्रोड्यूस कराए थे जो कोविड की वजह से थोड़े हॉल्ट पे चले गए थे. इस साल हमने वो किया था, लेकिन ड्यू टू रिवाइज्ड एग्जाम स्केड्यूल फॉर सीनियर स्टूडेंट्स अब हम इसको हमने खुद ही इसका डिसीजन लिया है कि मैंडेटरी नहीं करेंगे फॉर सेकंड टर्म. बट अगर आप लोग करवा सकते हैं, पॉसिबल है अगर, और आप लोग इस चीज को लेके एंथुसियास्टिक हैं कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए को-करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपके पास कोई विंडो निकलती है तो प्लीज जरूर करवाइए. अदरवाइज एज पर योर डिस्क्रिप्शन फॉर सीनियर स्टूडेंट्स. मैं हुमैरा ने जैसे आपको बताया कि सारे प्रोग्राम्स हम अब से सिविक अवेयरनेस के साथ लिंक करते हैं. तो सिविक अवेयरनेस कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये है कि जो फोकस है अब हायर अथॉरिटीज का थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा है कि क्या ये प्रोग्राम्स सिर्फ फिलर्स हैं या बच्चों को उसकी वजह से कोई उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है कि नहीं, क्या हम सिविक अवेयरनेस बच्चों में डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. सो सिविक अवेयरनेस बहुत छोटी छोटी चीजों में है. इफ यू टॉक अबाउट वैल्यूज एजुकेशन, इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंटी ड्रग अवेयरनेस, इमोशनल हेल्थ प्रोग्राम है आपका, साइबर सेफ्टी की हम बात करते हैं, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, प्राउड पाकिस्तानी की बात करते हैं, तो क्या सब में हम सिविक अवेयरनेस नहीं डेवलप कर रहे? वी आर डेवलपिंग. तो हमने अब जो है वो इसका इम्पैक्ट भी स्टडी करना है साथ साथ कि कितने बच्चे जो हैं. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपकी CCAs हैं प्लीज इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन ऑल CCAs. डू नॉट engage only a few students every time कि 3-4 बच्चे हैं वही repeated faces आप हर एक्टिविटी में हर कंपटीशन में उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं. हमारी सक्सेस इसमें है कि बजाय हम नंबर्स की बजाय हम इस चीज पे फोकस करें कि कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हमारी सक्सेस इसमें है कि हम सारे बच्चों को को-करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें. अगर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है तो आप डिवाइड कर लें बच्चों को उसमें अवेयरनेस सेशंस में, प्लांटेशन में, ड्राइव्स में, कैंपेन्स में हर बच्चे को मौका दें. तो अगर हम 10 एक्टिविटीज की लिस्ट प्रोवाइड की हुई है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो आप बेशक उसमें से 5 करवा लें, लेकिन वो 5 ऐसी हों कि उसमें आपने मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया हो. ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. thirdly, जैसे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंटरनल CCAs जो है वो APSACS के CCAs हैं, और एक्सटर्नल CCAs जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे AIS पे जो हमने डाली है, बेसिकली वी हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम ऑल द रीजन्स, और उसमें हमने जो मोस्ट कॉमन CCAs थे एक्सटर्नल जो मैक्सिमम स्कूल्स में और रीजन में हो रहे थे वो लिस्ट हमने प्रोवाइड की है. इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आती रहती होंगी. फॉर्मेशंस को भी ऑर्गेनाइजेशंस कांटेक्ट करती रहती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो सेक्रेटेरिएट के थ्रू आ रहा है आप उसी को कंडक्ट करवाएं. उसका एक रीजन ये है कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स डेटा मांग रही होती हैं, तो यहाँ से जो चीज आपके साथ शेयर हो रही होती है उसकी थोड़ी स्क्रूटनी हुई भी होती है कि वो कौन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या मोटिव है और वो सारा. लेकिन आपको डायरेक्टली अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो उसका एक दफा आप अप्रूवल जरूर सीख करें कि वो हम करवाएं या ना करवाएं. तो एवरीथिंग शुड कम थ्रू सेक्रेटेरिएट, तो थोड़ा सा उसमें डाउट का एलिमेंट कम हो जाता है. Focus should not be on external CCAs.
इंटरनल जो है वो आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाना मैंडेटरी है। व्हेन वी गो ऑन एवैल्यूएशंस तो हमें पता चलता है कि स्कूल्स ने कैंगरू कंपटीशन, आईकैट्स, ये वो सारे बहुत उन्होंने डेटा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन जो हमने अपने एकेडमिक कैलेंडर में दिया हुआ होता है वो एक्टिविटीज आप लोगों ने इस तरीके से कंडक्ट नहीं करवाई। तो आपकी अगर जो एवैल्यूएशन भी है या हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनल सीसीएस पे आपका फोकस ज्यादा जरूरी है। एक्सटर्नल ऑप्शन है, हम बल्कि लेटर्स और ईमेल्स में लिखते भी हैं दैट पार्टिसिपेशन इज डिस्क्रिशनरी। उसके दो रीजंस हैं, एक तो एक्सटर्नल है, सेकेंडली दे आर पेड कॉम्पिटिशन, मोस्ट ऑफ देम आर पेड कॉम्पिटिशंस। तो किसी भी बच्चे को आप फोर्स नहीं करेंगे पेड कॉम्पिटिशन के लिए। अगर वो विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके पेरेंट्स विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए, पे करने के लिए, आप करवाइए। अदरवाइज एज अ डिस्क्रिशनरी इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू शेयर that external competition with the school, with the students as well as with the parents. So now moving on to the CCA registers. This year there are 6 registers that you have to maintain. One is for co-curricular activities, and 4 registers for houses, 4 houses, and 1 for CCA clubs and makerspace program clubs register. ये वाला जो register है हमने introduce करवाया है इस साल, इससे पहले ये नहीं था CCA clubs and makerspace program register. So we'll start with the co-curricular. This is how it looks. अच्छा, यहाँ I would like to mention that ये जो session हो रहा है ये प्री स्कूल के लिए नहीं हो रहा। प्री स्कूल का आपको पता है डिफरेंट एक्टिविटीज उनकी डिफरेंट होती हैं, उसका स्केड्यूल डिफरेंट होता है, वो उनके करिकुलम के साथ डेली बेसिस पे अलाइंड होती हैं बच्चों की को-करिकुलर एक्टिविटीज, और उनका जो डाटा मेंटेन होता है वो भी सीसीए कोऑर्डिनेटर उस तरह से मेंटेन नहीं कर रहा होता, उनकी सेक्शन हेड या उनके अपने टीचर्स हैं जो प्री स्कूल का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसमें प्री है और वो सिर्फ जूनियर लेवल तक है तो वहां पे समटाइम्स एक ही सीसीए कोऑर्डिनेटर होता है जो देख रहा होता है, तो इट्स अप टू यू। But this session is particularly for the CC coordinators of junior, middle and senior section. अच्छा, आपको ऑलरेडी मैम हुमैरा ने ये बात बता दी भी है कि इससे पूरे स्कूल में एक सीसीए कोऑर्डिनेटर होगा। अब मल्टीपल, अब ये नहीं होगा कि जूनियर का अलग है, मिडिल का अलग है और सीनियर का अलग। एक सीसीए कोऑर्डिनेटर हर हाउस के लिए 1 हाउस इन चार्ज ईच, एंड फॉर मेकर स्पेस एंड क्लब्स एक उनका इंचार्ज होगा, मेकर स्पेस क्लब्स एंड सीसीए क्लब्स इंचार्ज। मल्टीपल जो अब रोल्स हैं वो हमने खत्म कर दी हैं, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है, मल्टीपल जगह पे डाटा मेंटेन हो रहा होता है। असिस्टेंट हाउस इंचार्ज एंड असिस्टेंट सीसीए कोऑर्डिनेटर आप रख सकते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू योर स्कूल स्ट्रेंथ, जो हमने ऑलरेडी पॉलिसी हैंडबुक के अंदर दी हुई है। अगर वो आपके स्कूल पे एप्लीकेबल है, आपका स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उस केस में यू कैन अपॉइंट एन अदर पर्सन एज अ सीसीए असिस्टेंट, CCA coordinator assistant and CCA and house in charge, assistant house in charge. Otherwise मुझे कल के सेशन में भी हमने जो करवाया था सबसे ज्यादा यही क्वेरी थी बार बार बताने के बावजूद भी कि क्या हर लेवल पे डिफरेंट है जो पूरे स्कूल का होगा other than preschool. So this is how you're going to enter data. This is we will start with the session. So this is सेशन आपका 2023-24 है। you'll write the region and core. रीजन में आप वार्म एंड कोल्ड रखें, लेकिन कोर में आप ये बताएं कि आप 10 कोर से हैं, 11 कोर से हैं, 31 कोर से हैं, सदर्न कमांड से हैं, ठीक है। तो वो कोल्ड एंड वार्म जो है वो उसको सफाइस नहीं करता, आप उसके साथ अपनी कोर भी जरूर मेंशन करें। स्कूल नेम, फुल नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल लेवल का मतलब है कि स्कूल कहाँ तक है आपका, व्हाट इज अगर प्री से सेकेंड ईयर तक है, क्लास 8 तक है, मिडिल तक है, मैट्रिक तक है, आप इसमें वो एंटर करेंगे। The name of the principal, because all section heads are involved for the CCAs, conduction of CCAs, तो आप यहाँ पे section head junior, section head middle and section head senior का इसमें आप नाम एंटर करेंगे। You have to write down the names of all the section heads, then name of the CCA coordinator and assistant CCA coordinator if it is applicable to your school. पीछे आ जाए। So this is the organogram. इस organogram में principal and section heads have the supervisory role, and then comes the CCA coordinator, and under the CCA coordinator, as you can see, house in charges, makerspace program in charges, CCA clubs in charges, and student council, they all come under the umbrella of CCA coordinator. So student council का भी बहुत important role होता है CCAs के conduction में,
So this is how it is. Now, this year we have added brief instructions at the start of each register. Just to facilitate you कि basic आपको instructions बताऊं. For detailed instructions, please refer to the policy handbook. Guide and encourage maximum students to participate in the CCA. That is very, very important. That should be the prime focus कि आप maximum participation ensure करवाएं बच्चों. Ensure CCA period record keeping is done correctly, realistically, regularly in CCA co-curricular and enrichment activities. और ये तभी होगा अगर आप as per schedule एक्टिविटीज कंडक्ट करवाएंगे. ये नहीं कि एवेल्युएशन टीम आ रही है तो 1-2 दिन पहले बैठ के आप सारा का सारा डेटा फिल कर रहे हो. वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि पता चल जाता है कि आपने वो डेटा अभी के अभी फिल किया है. दैट इज नॉट एट ऑल रियलिस्टिक. सो दैट वुड बी वेरी अनजस्टिफाइड कि अगर बच्चों के साथ आप उस तरीके से वो एक्टिविटीज ना करवाएं, क्योंकि इसमें हमारी सेक्रेटेरिएट लेवल पे भी बहुत सारी एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, बहुत थॉटफुल एफर्ट्स होती हैं सारी एक एक्टिविटी प्लान करने के पीछे. Record, register and give an overview of entire activity, internal, external, CCAs, values, education. ज़ीन इसको नीचे कर दें. Competitions और ये सारा इसके अंदर आप थोड़ा सा ऊपर दें और जी. तो रियलिस्टिक उसमें एंटर करें और जो आपका CCA रजिस्टर है वो ओवरव्यू दे रहा हो entire एक्टिविटी का, जो भी आप एंटर करें. Record of special achievements, medals, distinction should be indicated clearly with students detail. अगर कोई awards हैं, कोई बच्चों ने कोई competition win किया है, कोई mega event win किया तो उसकी details जो है clearly students detail के साथ हैं. Any further information may be written in any further information or comment section. उस activity को कराते हुए if you faced any problem or if you want to suggest something, so you can write there. Any further information that is relevant to the activity you have conducted. Maximum 2 to 3 relevant photographs of the events should be pasted in given section. आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि we have given a section. So हर activity से related 2 to 3 photographs से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लगानी. You keep the soft copy of all the photographs of the event in your laptop or in your computer या स्कूल का जो भी आपके पास सिस्टम है आप उसके अंदर जरूर मेंटेन करें. और उसके बाद आप जो है इसको फर्दर रिकॉर्ड जो है एक्टिविटी का या पिक्चर्स का वो आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो है APSACS सेक्रेटेरिएट या कंप्यूटर रिसोर्स एंड ग्राफिक्स डिपार्टमेंट एट गैलरी एट apsacsec.edu.pk पे एक्स्ट्रा पिक्चर्स जो है व्हिच आर मोर रेलेवेंट और मीनिंगफुल पिक्चर्स जो है वो आप शेयर करें. ठीक है. अच्छा, यहाँ मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कूल्स की तरफ से जो पिक्चर्स आ रही होती है ना उसके ऊपर आप लोगों ने वाटर मार्क लगाया हो या उसके ऊपर जैसे पिक्चर्स 5-6 का कोलाज बना के उसके ऊपर आपने स्कूल का नाम लिखा होता है तो अच्छी बात है. उस तरीके से क्योंकि हमने उन पिक्चर्स को ना पोस्टर्स के तौर पे उस तरह तो यूज करना नहीं होता. जब हमें बहुत अच्छी पिक्चर्स हमने देखी हैं कि आई हुई होती हैं लेकिन उसके ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है या वो कोलाज बनाया हुआ है तो हम वो पिक्चर जो रेलेवेंट उसके पीछे छुपी हुई होती है रिटन टेक्स्ट के पीछे वो होती बहुत खूबसूरत पिक्चर है, बहुत मीनिंगफुल होती है, लेकिन हम उसको क्रॉप करके कहीं लगा नहीं सकते क्योंकि वो फिर उसकी क्लैरिटी खराब हो जाती है. कोशिश करें कि स्कूल का फोल्डर बनाएं या वी ट्रांसफर के थ्रू उसको कंप्रेस्ड फोल्डर में उसको शेयर कर दें और स्कूल का नाम साथ लिख दें, लेकिन पिक्चर्स मीनिंगफुल होनी चाहिए कि अगर हमें कहीं यूज करनी है जैसे हमसे हायर अथॉरिटीज मांग लेती हैं किसी वक्त और हमने उन रिपोर्ट्स में डालनी होती है कि बच्चे ये एक्टिविटीज डिफरेंट स्कूल्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो पिक्चर्स थोड़ी सी इस तरह से भेजा करें कि कोलाज एक आधा बना लें बेशक, लेकिन पिक्चर्स की क्लैरिटी हमें इस तरह दें कि हमने कभी उनको कॉपी करके किसी रिपोर्ट में डालना है तो हमारे लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाए. रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्टिविटी मस्ट बी साइंड बाय रेलेवेंट सेक्शन हेड. जो भी एक्टिविटी आपने करवाई है वो हर एक्टिविटी के एंड पे आपने सेक्शन हेड से सिग्नेचर करवाने. प्रिंसिपल टू साइन द रिकॉर्ड रजिस्टर एट एंड ऑफ एवरी मंथ. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस रजिस्टर. So this is the main register. इसकी हर एक्टिविटी के बाद सेक्शन हेड के साइन होंगे और प्रिंसिपल जो है एवरी मंथ इस रजिस्टर को साइन करेगा. And this is the duty of the CCA coordinator to get it signed from both section head and principal. Next please चले जाएं. So इसके पैरेलल ये वाला पेज है कोर कमेटी मेंबर्स. यहाँ पे you have to write down the names of the core committee members. जो भी कमेटी है आपकी डेजिग्नेशन उनका क्या है and what is the role you have assigned to them. Next. So co-curricular enrichment activities record. इसमें आपका आ जाएगा डेट, then ये आपका एक जैसे आप मीटिंग करते हैं
सेशन के स्टार्ट में या आप टर्म के स्टार्ट में आपने एक मीटिंग की है, तो आपने एपसेक्स को-करिकुलर एक्टिविटीज कैलेंडर भी सामने रख लिया और आपने डिस्कस कर लिया आपस में जो भी आपके कोर कमेटी मेंबर्स हैं कि हम क्या इसी सीक्वेंस से एक्टिविटीज करवा सकते हैं या हमें किसी डेट पे, फॉर एग्जांपल हमने दी हुई है 17 अक्टूबर की कोई एक्टिविटी दी हुई है, लेकिन आपको लग रहा है उस दिन स्कूल में कोई और इवेंट है या बच्चों की कोई, वैसे तो चेक पॉइंट्स वगैरह का तो हम बहुत ख्याल करके हर चीज प्लान करते हैं, इस तरह की इसमें तो चीजें नहीं आ सकती, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से या कोई लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, इस तरह की कोई चीज प्लान हुई भी आ गई, इस वजह से स्कूल बंद हो गए या कुछ इस तरह हो गया, तो आप लोग वो एक्टिविटीज प्लान अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं, डेट्स कुछ आगे पीछे करनी है, फिर आगे रिमार्क्स आपने लिखने हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड। सो दिस इज द समरी ऑफ द मीटिंग दैट यू हैव कंडक्टेड कि आपने किस डेट पे कौन सी एक्टिविटी प्लान की है, तो वो आपके लिए यूजफुल बहुत है। रजिस्टर देखते ही आपको पता चलता जाएगा मंथ वाइज एक्टिविटीज का कि अच्छा इस मंथ में हमें ये एक्टिविटीज करानी है, तो ये एक हैंडी सी चीज आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट, सो ऊपर आप देखिए टर्म है, तो टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म की एक्टिविटीज हैं या सेकंड टर्म की एक्टिविटीज हैं। लेवल में आप लिखेंगे कि मिडिल की एक्टिविटी आपने जूनियर मिडिल के साथ करवाई है या जूनियर मिडिल सीनियर के साथ करवाई है, तो वो आप इस तरह से लिख देंगे। सिर्फ जूनियर की एक्टिविटी थी, यू हैव टू राइट डाउन द लेवल, so you'll end with the serial number, then date, then co-curricular enrichment activity कौन सी है, is it internal or external, उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, साथ आप उसको मेंशन कर देंगे इंटरनल है या एक्सटर्नल है। क्लास एंड सेक्शन, सो क्लास और सेक्शन का मतलब ये कि अगर एक आपने एक्टिविटी कराई है ट्री प्लांटेशन कैंपेन आपने करवाई है, उसमें आप क्लास वाइज लिखेंगे, एक्टिविटी तो एक ही आपने डाल दी है, साथ आप लिखेंगे 4B के बच्चे क्लास 4B, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 4B के 15 थे, एंड डिटेल ऑफ द एक्टिविटी के आपने कोई डिस्टिंक्शन वगैरह उसमें तो चले इसमें नहीं बनती, कोई कंपटीशन अगर हुआ है तो आप उसमें लिखेंगे, अदरवाइज यू विल हैव टू लीव दिस सेक्शन ब्लैंक। सेम फिर नीचे आप आ जाएंगे जी 6A के बच्चे थे, कितने पार्टिसिपेंट थे वो लिख लेंगे, सेम एक्टिविटी के अंडर आपने कितने सेक्शंस को कितनी क्लासेस को एंगेज किया है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर 4 है तो 4 को आप ये यूं भी लिख सकते हैं स्पेस सेव करने के लिए, 4A B 4B 4C 4D 4 सेक्शन के टोटल इतने पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, any further information and comments that I've already told, यहाँ आप लिख सकते हैं, this is a section of signature of section head with the date and signature of the principal at end of every month. So this is the space we have provided for the photographs. You have to paste 2 pictures for each activity, and I would discourage कि आप इसमें ढेर सारे pictures मत लगाएं, सिर्फ 2 ही हमने या 3 मांगी है तो सिर्फ उतनी relevant लगाएं, क्योंकि पेपर उसमें वेस्टेज भी होती है, प्रिंटिंग की कॉस्ट भी आती है, तो कोई हाईली डिस्करेज है। आप बाकी का डेटा जो है वो अपने पास सॉफ्ट में रखें, और अगर आपको से वैल्यूएशन टीम आती भी है एंड दे आस्क फॉर द एविडेंस, सो यू कैन शो इन द सॉफ्ट फॉर्म, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो इसमें ये पेजेस इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे, आप इसमें डाटा एंटर करते जाएंगे। ये सॉफ्ट में भी आपके पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, दे आर अपलोडेड एंड एडिटेबल फॉर्म में भी हैं, तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू मेंटेन द डेटा इन द हार्ड फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म। डुप्लीकेशन इज डिस्करेज, ये नहीं कि आप इधर भी कर रहे हैं और सॉफ्ट में भी कर रहे हैं, किसी एक फॉर्मेट पे करें। दोनों फॉर्मेट्स हैं सेक्रेटेरिएट के लिए, दोनों वर्जन्स दे आर एक्सेप्टेबल, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज CCA क्लास एंड मेकर स्पेस प्रोग्राम रिकॉर्ड रजिस्टर फॉर जूनियर मिडिल एंड सीनियर लेवल। सेम आप उसमें इसी तरीके से डाटा एंटर करेंगे, नीचे CCA कोऑर्डिनेटर का नाम आएगा, बिकॉज CCA कोऑर्डिनेटर इज द इन चार्ज ऑफ these clubs and makerspace program clubs. So these are the instructions, ensure maximum participation, इसी तरह realistic data आप enter करिए, उसके अंदर the register will be kept with CCA coordinator and filled by club in charges after each activity. तो ये रजिस्टर भी जो है वो CCA कोऑर्डिनेटर के पास ही होगा, जो क्लब इंचार्जेस है, हर क्लब का एक इंचार्ज है, तो वो उस क्लब के इंचार्ज ने जो भी एक्टिविटी बच्चों के साथ करवाई है वो डाटा आके इसके अंदर फिल कर देगा, CCA कोऑर्डिनेटर के पास ही आके। Record of each meeting activity must be signed by CCA coordinator at end of every month. Principal and section heads to sign the register at the end of each term. For each this register, CCA coordinator हर month इसको sign करेगा activities को, जो भी club incharges इसमें enter करें, और principal and section head term के end में इसको करेंगे। Maximum 2 to 3 relevant photographs, same instructions है, soft copy maintain करें अपने पास, 2 to 3 photographs आप लगाएं, और rest of the pictures to be emailed to Computer Resource and Graphic Department of APSACS Secretariat, ठीक है।
So this is the same CCA Clubs and Makerspace program members जो हैं आपके अंदर, इसमें आपके सारे क्लब इंचार्जेस आ जाएंगे, उनका डेजिग्नेशन क्या है एंड व्हाट इज द असाइन्ड रोल। देन इसमें वही आपने मीटिंग की और आपने क्लब एक्टिविटीज प्लान कर ली कि कौन सी डेट पे कौन सी एक्टिविटी करवानी है। फर्दर उस पर कोई कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं कि आपने किस तरीके से करवानी है, किन बच्चों के साथ करवानी है, कौन सी स्पेस आप यूटिलाइज करेंगे। यू कैन एंटर द डिटेल्स हियर। सो एक टेम्पलेट मैंने आपके लिए फिल कर दिया। इस रजिस्टर में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। हाफ पार्ट इज गिवन फॉर CCA क्लास एंड हाफ पार्ट इज गिवन फॉर मेकर स्पेस क्लास। बाकी डाटा उसमें सेम ही है, तो आपने इसको केयरफुली देखना है कि जो CCA क्लास का है वो आप इसमें एंटर करें, मेकर स्पेस क्लास का आप उसमें एंटर करें। डेट CCA क्लास फॉर एग्जांपल इट वाज ड्रामेटिक्स क्लब, इसमें क्लास सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था 4B 8C 6D इतने पार्टिसिपेंट्स हैं उसके क्लब्स, इन बच्चों ने ये वाला क्लब ज्वाइन किया हुआ है। देन डिटेल ऑफ द एक्टिविटी। तो जो क्लब्स हैं वो वैसे भी जूनियर लेवल पे नहीं है। क्लब्स और मेकर स्पेस CCA क्लब्स एंड मेकर स्पेस प्रोग्राम क्लब्स जो हैं वो मिडिल और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, तो छोटे बच्चों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, जूनियर बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स लर्न टू राइट स्क्रिप्ट, रोल प्लेज, डिड रिहर्सल्स फॉर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। सो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल दिया कि बच्चों ने उस क्लब में क्या एक्टिविटी, फाइनल इवेंट हुआ था या फिर रिहर्सल्स चल रही हैं, प्रेपरेशंस चल रही हैं, इस तरह से। Any further information and comments and signature of CCA coordinator। ठीक है, ये इसी तरह से आ गया क्लास सेक्शन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, डिटेल ऑफ द एक्टिविटी, और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ्स, आप रेलेवेंट फोटोग्राफ्स आप लगा देंगे। अब ये सेक्शन जो मैं आपको बता रही थी उसमें बाकी सब कुछ सेम है, ऊपर टर्म, लेवल, डेट एंड दिस इज मेकर स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप मेकर स्पेस क्लब का नाम, प्रोग्राम का नाम लिखेंगे और आगे इसी तरह से इसका डेटा एंटर करते जाएंगे और यू हैव टू अटैच द पिक्टोरियल एविडेंस, रेलेवेंट फोटोग्राफ्स। Now moving on to the house registers. So we have 4 houses, you all know. They have different colors. For example, this is discipline house, and saying you have to enter the data of session, region, name of the school, school level, principal, all section head, CCA coordinator, name of the house in charge, name of the house and name of the house in charge. So instructions are core committee members include house in charges. House in charge है, assistant house in charge if applicable, head boy, head girl if applicable, house captains आपके इसमें कमेटी में आएंगे। हाउस इन चार्ज टू चेयर द हाउस मीटिंग, 1 in each term। टर्म की स्टार्ट में आप मीटिंग करेंगे एंड फिल द रिकॉर्ड इन द रेलेवेंट सेक्शन, और शुरू में जो रिकॉर्ड दिया हुआ है वो आप उसको फिल कर देंगे। द रजिस्टर विल बी फिल्ड बाय हाउस इन चार्ज आफ्टर ईच एक्टिविटी। तो ये जो हाउस रजिस्टर्स हैं हाउस इन चार्ज जिसके पास होंगे, CCA कोऑर्डिनेटर विल साइन द हाउस रजिस्टर आफ्टर ईच एक्टिविटी। ठीक है, हर एक्टिविटी के बाद CCA कोऑर्डिनेटर उनको साइन करेंगे क्योंकि ये भी CCA कोऑर्डिनेटर के अंडर ही आ रहे हैं। हाउस पॉइंट्स स्कोर्स विल बी अपडेटेड आफ्टर ईच इवेंट इन इंटर हाउस कंपटीशन रिजल्ट सेक्शन। अगर कोई हाउस मेगा इवेंट विन करता है तो उस हाउस को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, और अगर वो हाउस इंटर हाउस कंपटीशन भी विन करता है तब भी उसको मार्क्स मिलेंगे। तो वो मार्क्स यहाँ पे आप एंटर करते जाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन you are going to calculate the marks for each house, और जिस हाउस के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वो that house will be house of the year। Next, sorry, just the parallel page था। So this is how it is, name, designation and assigned role। core committee members आप इसके आ जाएंगे, हाउस के नीचे आ जाएंगे। So यहाँ पे आपकी जो मीटिंग आपने टर्म के स्टार्ट में की है, मीटिंग, प्लान्ड एक्टिविटी एंड रिमार्क्स उसी तरीके से आप दे देंगे इसके अंदर। देन ये है APSACS इंटर हाउस सिस्टम रिकॉर्ड, इंटर हाउस कंपटीशन रिजल्ट। जो इंटर हाउस या मेगा इवेंट आप किसी बच्चे स्कूल के अंदर अगर इंटर हाउस कंपटीशन विन किया है तो भी 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आई होप आई एम राइट, 1 mark फॉर इंटर हाउस 1 मार्क, ओके, मेगा के लिए 5 मार्क्स है। तो 1 मार्क फॉर इंटर हाउस कंपटीशन। अगर इंटर हाउस कंपटीशन था और उसमें इस हाउस ने डिसिप्लिन ने विन कर लिया तो 1 पॉइंट उनको मिल जाएगा उस कंपटीशन का विन करने का। अगर वो उस हाउस के बच्चे मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो उस हाउस ने मेगा इवेंट भी विन कर लिया है, जो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, तो उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बाय द एंड आप उसको सारा कर देंगे। सो डेट, नेम ऑफ द कंपटीशन, फॉर एग्जांपल इट वाज
इंटर हाउस नात एंड किरात कंपटीशन, ठीक है, और इस हाउस ने विन कर लिया तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली फिर कोई डिबेट्स कंपटीशन हुआ था तो इंटर हाउस भी विन किया, मेगा भी विन कर लिया, इंटर हाउस के लिए 1 मार्क्स, और फिर मेगा कंपटीशन विन किया, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है मेगा कंपटीशन तो 5 मार्क्स मिल जाए। सिग्नेचर्स ऑफ द सीसी कोऑर्डिनेटर, एंड यहाँ पे टोटल स्कोर आप कर देंगे, देन सिग्नेचर्स ऑफ द सीसी कोऑर्डिनेटर एंड डेट। यहाँ पे आप एक्टिविटीज की डिटेल्स डालेंगे, डेट, हाउस कंपटीशन क्या था एंड कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, क्लास सेक्शन, नेम ऑफ द विनर्स, एंड इफ देयर आर एनी डिस्टिंक्शंस इन द मेगा इवेंट्स, तो ये रेलेवेंट सेक्शंस है, अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आप इनको फिल करेंगे। देन अगेन सिग्नेचर्स, तो ये सारे के सारे हाउसेस जो है उनका टेम्पलेट इज द सेम, 4 हाउसेस में सेम इंफॉर्मेशन है, सेम टेम्पलेट है, देयर ओनली द कलर्स आर डिफरेंट एंड नेम्स आर डिफरेंट। So this is all about house registers. I hope आप लोगों को clarity होगी. Now we are done with the session and we are open for queries. If you have any questions, please feel free to ask. You can write in the chat box. You can raise your hands. Please feel free to ask. In the meantime, we can go to chat box. Yes. The preschool coordinator should be separate or not? Yes, as I've already told, I hope it is clear. Preschool coordinator जो है वो different होती हैं, separate होती हैं. Mostly इनका जो record है वो section head या उनके जो teachers हैं वो fill कर रही होती हैं. तो अगर आपका स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत कम है या सिर्फ जूनियर लेवल तक है तो फिर एक सीसीए कोऑर्डिनेटर भी होता है स्कूल में, इस तरह से भी होता है। तो उस केस में एप्लीकेबल है कि आप इसी सेम रजिस्टर को प्री स्कूल के लिए भी यूज करें और हाफ में आप प्री स्कूल का डेटा एंटर कर लें, हाफ में आप जूनियर का एंटर कर लें। लेकिन अगर आपका स्कूल टिल मैट्रिक टिल एचएसएससी है तो सीसीए कोऑर्डिनेटर प्री के लिए सेपरेट है एंड फॉर जूनियर मिडिल एंड सीनियर there will be a separate CCA coordinator क्योंकि प्री स्कूल की activities are different from main activities. Any other question? Visa cover. Please unmute your mic. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Am I audible, ma'am? Yes, we can hear you. Okay, ma'am. My first question is कि जो मेकर स्पेस इंचार्ज है वो भी क्या पूरे स्कूल की कोई होंगी मेकर स्पेस इंचार्ज? जी देखिए, मेकर स्पेस में आपके एक तो सीसीए क्लब्स एंड मेकर स्पेस क्लब इंचार्जेस हैं, ठीक है। इसका एक ये जो एक सीसीए क्लब्स एंड मेकर स्पेस क्लब्स जो है ना वो एक इंचार्ज के अंडर आते हैं। उस इंचार्ज के अंडर फर्दर आपके क्लब्स हैं और हर क्लब का एक सेपरेट इंचार्ज होगा, ठीक है। जो एक्टिविटी वो सीसीए क्लब का इंचार्ज करवा रहा है वो लाके उस रजिस्टर के अंदर फिल कर देगा, ठीक है। I'm confused about the register as well. We have to note down. Please बताइए क्या कंफ्यूजन है आपको? जो क्या कहते हैं मेकर स्पेस के जो भी क्लब्स की जो भी एक्टिविटीज हैं और जो क्लब सीसीए क्लब्स की जो एक्टिविटीज हैं वो सब भी उन मेकर स्पेस वाले रजिस्टर में जाएंगी ना? जी, उसी मेकर स्पेस के अंदर हमने बाइफिकेशन की हुई है। मैंने शुरू में ही बताया कि उसके 2 पार्ट्स हैं उसी रजिस्टर के। हाफ जो है वो सीसीए क्लब्स के लिए और हाफ इज फॉर मेकर स्पेस क्लब्स। तो आपने जो सीसीए क्लब्स की एक्टिविटी अगर आप रजिस्टर देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप आई होप अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर हार्ड में आपको बस आप लोगों ने प्रिंट करवा ली है तो तब भी देख लीजिए। All right, thank you so much. Welcome. What is the difference between CCA clubs and makerspace clubs and how they will run parallel? For the details, please refer to the policy handbook. इसमें सारी details दी हुई हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे and I would like to request you all कि please ये session attend करने से पहले भी I hope आपने book को पढ़ा होगा जो हमने अपडेट की। अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप इसको एक दफा जरूर देखें। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू रिसर्च डिपार्टमेंट। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, यू कैन कम थ्रू आरडी और स्कूल प्रिंसिपल। आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, which is relevant। हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू द रिसर्च डिपार्टमेंट, बट प्लीज गो थ्रू द हैंडबुक दैट वी हैव डेवलप्ड with all the detailed instructions. जी, Ms. Pukarba, please unmute the mic. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yes, ma'am. I just want to confirm that CCA clubs and maker space clubs are not for junior section. No, they are not for junior section. As I have already told, जो क्लब्स हैं आपके 4th onwards हैं, मिडिल स्कूल के लिए, मिडिल सीनियर के लिए होते हैं, जूनियर बच्चों के लिए नहीं। Okay, thank you. And second thing, जो हमारे स्टूडेंट काउंसिल बुक में मैंने पढ़ा है उसमें क्लास वाइज
4 house CRs are in each class. तो जो peacekeepers और mentors वगैरह इस साल नहीं होंगे? पीस कीपर्स भी होंगे उसके अंदर, लेकिन पीस कीपर्स के लिए ना हम इसके अंदर क्योंकि इस तरह से कोई पॉलिसी प्रॉपर हमारी नहीं है, तो पीस कीपर्स के लिए एक शेयर हुआ था कि पीस कीपर स्कूल में होने चाहिए। तो जो हमारी मेन कमेटी होती है स्टूडेंट काउंसिल की, उसके अंदर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, लेकिन इट्स अप टू स्कूल्स डिस्क्रिप्शन, वो अपनी उसके मोडालिटीज फॉलो कर सकते हैं। हम दोबारा से इसकी पॉलिसी और इसका लेटर शेयर भी कर देंगे जो कि पहले शेयर हुआ था। वी कैन शेयर द पॉलिसी अगेन। Okay, ma'am. Thank you so much. It's not complete. Please unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Please ask your question. Sir, Ismat Dawkir from APSACS Cohort. मैम मेरा क्वेश्चन डिप्टी जो हेड गर्ल हुई थी उसके बारे में है। वैसे तो उसमें बुकलेट में सिर्फ एक ही हेड गर्ल है, तो क्या हम डिप्टी भी रख सकते हैं स्टूडेंट काउंसिल में? और पीस कीपर के हवाले से भी था कि उसके हवाले से भी कुछ खास जिक्र नहीं है। CRs वगैरह का तो सारा मेंशन है, बट पीस कीपर चूंकि पहले हम चलाते थे अब नहीं है। और साथ में डिप्टी हेड गर्ल के बारे में बता दीजिएगा। जी मैम, हमने सिर्फ हेड गर्ल और हेड बॉय के लिए कहा हुआ है। वी हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट डिप्टी हेड बॉय हेड गर्ल, बट हम एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी इसके बारे में भी वो कर देंगे। बट इफ द स्कूल्स आर हैविंग डिप्टी हेड बॉय हेड गर्ल, तो दे कैन कंटिन्यू विद दैट प्रैक्टिस। एंड सेम गोज फॉर पीस कीपर्स, जो प्रीवियस प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप लोग सैशेस भी दे रहे थे और उनको भी आप इलेक्शंस वगैरह करवा रहे हैं, तो गो अहेड विद दैट प्रैक्टिस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ये एक क्वेश्चन आया है बहावलपुर से। When we are maintaining the record on AIS, then why should we maintain the register? Also, why duplication of effort? देखें, एक तो ये कि ये जो AIS का रिकॉर्ड है ये अपडेटेड रिकॉर्ड होगा, और जैसा कि समरीन ने भी बताया कि एट टाइम्स हमें स्पर ऑफ द मोमेंट में हायर अथॉरिटीज की तरफ से आ जाता है कि स्कूल्स क्या कर रहे हैं, कितनी एक्टिविटीज हुई हैं, क्या इम्पैक्ट है। तो हम हर दफा स्कूल के पास नहीं आ सकते ये पूछने के लिए। फॉर अस इट इज वेरी कन्वीनियंट। सेकेंडली, AIS जो है वो बहुत से ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे नेट इश्यूज हैं, जहाँ पे वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन के और हम हर दफा आपके रजिस्टर्स या वैल्यूएशन के ऊपर नहीं होते कि हमें वो रिकॉर्ड मिल जाए। अच्छा, सेकेंडली उसमें आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो आपका AIS है ना, वो एक होलिस्टिक पिक्चर दे रहा है आपके रिकॉर्ड की, कि आपने अवेयरनेस सेशन कराया, इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उसमें थे। जो आपके रजिस्टर्स हैं, अगर आप उसमें देखें, उन्हें क्लास वाइज एंड सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन मांगी। तो जब हम इवैल्यूएशन पे जाते हैं तो उससे हमें एक ये पिक्चर मिलती है कि जी आपने हर लेवल के बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाया था। जबकि AIS का जो फॉर्म है उसके अंदर हमने इस तरह से डेटा नहीं मांगा था कि क्लास कितनी, कौन सी क्लास के कितने बच्चे थे। उसमें तो हमने एक कलेक्टिव नंबर मांगा है कि इस एक्टिविटी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे। तो जो CCA जो हाउस रजिस्टर्स हैं या CCA रजिस्टर्स हैं, वो आपका डेटा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में देते हैं, और उसमें जो है इवैल्यूएशन के टर्म से और आपके अपने उसके लिए, जैसे आपने वो डाटा, अब हमने कहा कि आप इंडोर्स कराएं प्रिंसिपल से, सेक्शन हेड से, तो वो एक आपके हमारे लिए भी एक उसका रिकॉर्ड होता है कि आपने प्रॉपर सेक्शन हेड और प्रिंसिपल ने उसको देखा है, वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, उनके कमेंट्स हैं, तो उसके लिए वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन AIS। तो उसका हमें थोड़ा सा अपने लिए भी थोड़ा सबूत भी चाहिए होता है, प्लस वो एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमें दे रहा होता है कि कितने बच्चे किस लेवल के उसमें इन्वॉल्व। आई होप इट इज क्लियर। Then we have this is duplication. ऊपर एक question है, Noshera has reservation that if there is one CC coordinator for the whole school, then calendars are different. At some time, rest of the sections having off, and SSC, HSC classes are on board, and coordinators. Sorry, coordinator. And coordinator, if is from lower section, then she will have off. Now, how activities will be carried and who will maintain the record? देखिए, हमने जो कैलेंडर में एक्टिविटीज डाली हुई है ना, वो हमने सब कुछ देख के डाली हुई है। हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दी जो एग्जाम्स में आ रही हो, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दी जो कि बच्चों का ऑफ टाइम चल रहा है तो उसके अंदर आ रही है, आप उसको देखें। सारी की सारी एक्टिविटीज, बी इट जूनियर लेवल, मिडिल और सीनियर, ऑल द एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन द रेगुलर एकेडमिक सेशंस. We have excluded the
चेक पॉइंट्स टाइम एक्सक्लूडेड द वेकेशन या हॉलीडेज या एग्जाम टाइम, वो सारा का सारा खत्म, उसको मतलब उस साइड पे रख के हमने जो आपका टीचिंग डेज है उसके अंदर एक्टिविटीज डालनी है। तो ये प्लानिंग है। और देखें सीसीए कोऑर्डिनेटर अकेला नहीं करवा रहा, हमने हर उसकी शुरू में दिया हुआ है कि उसमें कमेटी मेंबर्स हों, तो आपकी टीम तो होगी लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग और जो इंचार्ज है ओवरऑल दैट विल बी द सीसीए कोऑर्डिनेटर, प्लानिंग वो सारी वो करेंगे। एग्जीक्यूशन के लिए यू कैन इन्वॉल्व टीचर्स, यू कैन इन्वॉल्व द स्टूडेंट काउंसिल, सो दिस इज हाउ इट विल गो। अब ट्री प्लांटेशन अगर सारे स्कूल की एक ही डेट पे आ रही है तो कैंपेन है पूरा स्कूल, उसमें आप बैनर्स लगाएं, आप अवेयरनेस वॉक्स कराएं, आप सब कुछ करवाएं, मॉर्निंग असेंबलीज में करवाएं। तो सारी एक्टिविटीज आपने पूरा पूरा दिन भी नहीं करवाना। देयर आर एक्टिविटीज जो आप सिर्फ मॉर्निंग असेंबलीज में करवाएंगे, अवेयरनेस सेशन जैसे हेल्थ एंड हाइजीन है, तो वो हेल्थ एंड हाइजीन वीक हमने दिया था उसके अंदर, तो आप उसमें मॉर्निंग असेंबली में बच्चे इसको वो कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, बच्चे हेल्दी लंच बॉक्स लाएं, उस पूरे वीक में आप ऑब्जर्व करें कि कोई जंक फूड नहीं खाएगा, कोई इस तरह से नहीं करेगा, और आप सब पहले से भी ये सब कुछ करते भी हैं। प्लस आप टीचर जो है वो क्लासरूम में डिस्कस करें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स या हाइजीन की इंपॉर्टेंस। फिर आपके ऑरल डेंटल कैंप्स लग जाते हैं, उसमें बच्चे जो है वो जाके अपना ऑरल डेंटल चेकअप करवाते हैं। तो ये इस तरीके से वो इन्वॉल्व होती है। तो प्लानिंग आपने करनी है कि किस तरीके से आपने लेके चलना है, अदरवाइज आई थिंक इट्स मैनेजेबल, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। नेक्स्ट जी मिस परत लो, प्लीज अनम्यूट योर माइक। Assalamu alaikum. I am Miriam Sayed from APSACS coordinator. जी आपकी आवाज बहुत स्लो है, प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर। Assalamu alaikum. Am I audible to you now? yes, we can hear you. It's Please. better now. Assalamu alaikum. I am Iram Sayed from APSACS Khanewal, CCA coordinator. My question is, as we have 3 levels in our school, like junior, middle, and senior. So, as today we had a single national song competition, and we have winners at both levels, junior and middle. So, how we are going to assign them the marks? Like I have winner, Unity House winner from junior wing, and Faith House winner from middle wing. So, am I supposed to give them 1 mark to each level, or I have to give 1 mark to one house? Like we have to conduct the competition in both levels, juniors and middle. Please tell us about this. जिस सेक्शन में भी विनर है आप उनको मार्क्स देते हैं, ठीक है? अगर वो जूनियर के विनर्स हैं, जो दोनों में है, अगर जूनियर में भी विनर है तो आप जूनियर का 1 मार्क दे दें, जो सीनियर में है उनको सीनियर में 1 मार्क दे दें। ये तो जिस लेवल में भी विनर है, यू आर गोइंग टू गिव द मार्क्स ना। जी बिल्कुल, there is no harm। Okay, ma'am, we have one register, and as we have to मिडिल के साथ नहीं करवा रहे ना। अब जो जूनियर लेवल के बच्चे हैं उनका तो जूनियर लेवल के बच्चों के साथ इंटर हाउस कंपटीशन होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जूनियर का कंपटीशन मिडिल वालों के साथ और मिडिल वालों का सीनियर वालों के साथ करवा रहे हो, ठीक है? इस तरह तो नहीं होता, ठीक है? तो आपका जो जूनियर के विनर्स हैं वो जूनियर के इंटर हाउस कंपटीशन अगर उन्होंने विन किया तो जूनियर में जूनियर वाले हाउस को मार्क्स मिलेंगे, मिडिल में मिडिल वाले को मिलेंगे। आई होप आई एम क्लियर। Ma'am, we have one register and we have to record maintain on one register. So we will maintain separately with level wise. आप उसमें साथ में मेंशन कर देना, क्लास तो मेंशन है ना। हाँ जी, क्लास और सेक्शन तो हमने मांगा हुआ है ना उसके अंदर, आप उसमें मेंशन कर देना। देखिए जिस तरह समरीन ने आपको बताया था, फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटर हाउस क्विज कंपटीशन रख रहे हैं, ठीक है, वो आपने जूनियर लेवल पे भी करवाया, सीनियर पे भी करवाया और मिडिल में भी करवाया, तो आप बेशक जो क्लास जहाँ पे मेंशन है वहां पे वो लिख दें कि जी ये जूनियर, मिडिल और सीनियर या 4, 5, 6, 7, 8 तक सब क्लासेस में हुआ है। बट वंस जब आप उनके विनर्स लिखना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे कि जूनियर में ये विनर जो आपके सामने आ रहा है ना, इसके देखिए इंटर हाउस कंपटीशन रिजल्ट जो आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्लैरिटी ताकि आपको दोबारा से हो जाए। यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट है, नेम ऑफ द कंपटीशन, आपने नेशनल सॉन्ग्स कंपटीशन करवाया है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख दें जूनियर स्कूल, ठीक है, और उसके पॉइंट स्कोर्स लिख दें। नेक्स्ट आपका फिर सिंगिंग कंपटीशन आप लिख दें मिडिल स्कूल और उसके आप पॉइंट स्कोर, तो आप डाटा उसमें अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत एंटर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और फिर डिटेल डेटा आगे भी तो आ रहा है, उसमें आप मांग रहे हैं इंटर नीचे आगे सही देखिए नेम्स ऑफ द विनर्स, ठीक है, और डिस्टिंक्शन आगे जी डिफरेंट हो जाए। आई होप
I have one more question, as we have to announce one house of the year. जी So we will announce house of the years wing wise, level wise, आप wing wise junior, करें middle. जी जूनियर का अलग करें मिडिल का अलग करें सीनियर का अलग करें क्योंकि कंपटीशन आप इंटरसेक्शन कंपटीशन नहीं करवा रहे ना आप तो थैंक्स फॉर द क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इनका इसकी वजह से बाकी लोगों के लिए भी क्लैरिटी आ गई और हमारे अपने लिए भी कि हमने ये मिस कर दिया था इस चीज को थैंक यू सो मच फॉर द पर्टिनेंट क्वेरी जी मिसेस अदीला सदर प्लीज अनम्यूट योर वॉइस मिसेस अदीला सदर अच्छा इधर चले हम साइड बाय साइड ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं is it mandatory for preschool CCA coordinator to attend this workshop no it's not mandatory ठीक है pause ऊपर करिए अच्छा ये pause दिया okay we have already discussed that नीचे आ जाइए गड़ी तो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मिस अदीला सदर जी मैम आई एम सीसी कोऑर्डिनेटर फ्रॉम APS मानसर कैंप मैम आई हैव टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्लब्स पहली कुछ बात तो मुझे ये पूछनी थी कि जो सीसीए क्लब है और नंबर ऑफ क्लब्स के बारे में बात कर रही हूँ कि जो सीसीए क्लब हैं और मेकर स्पेस क्लब्स हैं इनको टोटल ये 5 होने चाहिए या मेकर स्पेस क्लब जो है वो 5 होने चाहिए और सीसीए अलग होने चाहिए एक तो मैंने ये चीज पूछनी है और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हाउस रजिस्टर्स होते हैं उसमें हमने सिर्फ इंटर हाउस कंपटीशंस ही करने हैं या जिस तरह 14 अगस्त का गुजरा है 6 सितंबर का आएगा उसको भी मेंशन करेंगे हम देखिए जितने भी आपके कॉम्पिटिशन्स होती हैं एक्टिविटीज अदरवाइज भी हाउस वाइज तो होती ही होती है ठीक है जी जी बिल्कुल लेकिन जो हाउस रजिस्टर्स हैं वो पर्टिनेंट होते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स के लिए कि उसमें हाउस वाइज अगर आपने एक्टिविटीज करवाई है तो उसका डाटा आ रहा होता है अदरवाइज जो बाकी सारी जनरल एक्टिविटीज हैं जो पूरा स्कूल जिसमें इन्वॉल्व होता है वो आपके उसमें आती हैं सीसीए रजिस्टर में ठीक है तो हाउस सही रजिस्टर्स जो है वो हाउस एक्टिविटीज के लिए होते हैं और आपका क्लब्स पहला क्वेश्चन था कि आपका जो सीसीए क्लब्स हैं और जो मेकर स्पेस क्लब है do we need to have total in 5? No, I was saying that CCA clubs, there's a list that we have given. जैसा CCA clubs के लिए हमने young journalist club रखा हुआ है, poetry club रखा हुआ है, किरात और नात रखा हुआ है, then foreign club, digital literacy club. तो आप इस list में से भी any 5 you are going to offer for the students. Then you can add your own club as well. ये आपकी देखिए हमने आपको पहले ही कहा है कि ये सब सजेस्टिव क्लब्स हैं अगर आप 10 के 10 मेंटेन कर सकते हैं तो भी करें अगर आप एटलीस्ट 5 करें डोंट ऑफर ओनली क्लब्स के बच्चों के पास चॉइस ही ना हो खाली 2 इसी तरह मेकर स्पेस क्लब्स जो हैं अगेन वी हैव गिवन सजेशन फॉर 10-12 क्लब्स अगर इसके अलावा आप कोई इन 10 में से नहीं कोई चूज करना चाहते हैं एंड यू फील कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो किसी और क्लब के लिए हैं तो यू कैन गो अहेड विद दैट अगेन आप बच्चों को 5 क्लब्स की एटलीस्ट ऑफर दें टू रन ठीक है जी थैंक यू सो मच दोनों में से 5 at least 5 What are the period allocation for CCA coordinator? It's 16 to 18 periods already mentioned. 14 to 16 assistant के लिए 16 okay assistant के लिए 16 to 18 है और CCA coordinators के लिए 14 to 16 है because they have an additional task to do. So the principals और section heads सुन रहे हैं तो please जितने भी लोग schools में additional role पे होते हैं उनकी पीरियड एलोकेशन जो है उसको भी जस्टिफाई करें बिकॉज उनका वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि वो टीचिंग पीरियड्स भी सारे के सारे ले रहे हैं प्लस वो सीसी एक्टिविटीज भी करा रहे हैं सो देयर वर्कलोड मस्ट बी जस्टिफाइड एंड वन थिंग आई नीड टू ऐड मोर ये जो आपका हमने कहा कि वन सीसी कोऑर्डिनेटर फॉर द होल स्कूल आई थिंक ये स्कूल वालों के लिए भी इट्स मोर फीजिबल बिकॉज यू नो प्रीवियसली वंस यू वर हैविंग सेपरेट सीसी कोऑर्डिनेटर्स तो आपको यू हैड टू फैसिलिटेट 3 कोऑर्डिनेटर्स कि आप उनके जूनियर के भी 14 to 16 कर रहे हैं पीरियड्स लिमिट फिर आप सीनियर के भी कर रहे हैं मिडिल के भी कर रहे हैं अब आपके लिए स्कूल के लिए भी इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू हैव वन सीसी कोऑर्डिनेटर के जिसके कि आप 14 to 16 पीरियड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें इस तरह तो आपको हर सेक्शन में आपको एंड आपके पास इतनी टीचर स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप उनको कम पीरियड्स के ऊपर वो लेके आए थैंक यू We have a query from Global Academy. ये कौन सा स्कूल है? Please unmute your mic. We are unable to hear you.
जी Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम जी प्लीज Sir, I'm CCA coordinator, senior school from APS Mardan. Ma'am, we have a lot of questions. The very first one is, as we have already asked you, we have 7,000 plus strength. Or how is it possible to? सेशन अटेंड किया था मर्दान वालों ने जी कल भी आप लोगों ने सेशन अटेंड किया था कल भी जी मर्दान का था। जी बिल्कुल नहीं, बट वी हैव हमने ये आरडीज के साथ लिस्ट शेयर की हुई है। ये 3 days का आपका सेशन है। होगा तो आज है ना अलिया फ्रॉम मर्दान नहीं which school is this मर्दान is from Yes. okay ask away please ओके थैंक यू मैम एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोगों ने मेंशन किया ऑलरेडी यहाँ पे हमारे जो है सीसीए क्लब्स भी है और मेकर स्पेस भी है और डिफरेंट सीसीए एक्टिविटीज भी है। तो कुछ सीसीए एक्टिविटीज तो ऑलरेडी हमारे साथ प्लान होती है, सेक्रेटरीट के साइड से आप लोगों ने प्लान किए होते हैं, डेट्स मेंशन किए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेकर स्पेस वगैरह इस सब के लिए हमने वेडनेसडे को 0 पीरियड चलाना होता है अपने कैंपस में। तो मैम समटाइम्स जो है अनप्लान्ड वेकेशंस आ जाती है, सिक्योरिटी रीजंस, हार्श वेदर्स, लाइक इस टाइप की चीजें। तो मैम हाउ इज इट पॉसिबल टू और इज इट मैंडेटरी टू कैरी ऑन ऑल द प्लान्ड एक्टिविटीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड कि हम उसको फिर बाद में करें? क्योंकि मैंने आपको पहले भी हो जाता है मैम कॉलेज सेक्शन। जी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात मेंशन की थी कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से इट्स एप्लीकेबल टू ऑल स्कूल्स। कुछ भी हो जाता है आपके लोकल रीजन में, सिटी में कोई इस तरह के अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गए, समटाइम्स बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, फ्लड्स और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, कोई और कैंपेन चल रही है, कोई धरना हो गया, तो आप उस एक्टिविटी को आगे ले जाएं, नहीं उसको कहीं और स्केड्यूल कर लें, कहीं और स्केड्यूल कर लें। और आप देखें जब जैसा फ्लड्स आए हुए थे कोयटा में और एंड ड्यू टू दोज फ्लड्स दे वर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद देयर नॉर्मल रूटीन स्कूल्स, तो उन्होंने महीना एक शॉर्ट कर दिया था। तो फिर हम अकॉर्डिंगली सिलेबस जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह आप देखें आप सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो आप ऑब्वियसली वही करेंगे जो आपकी आ रही है, जितने सीसीए पीरियड्स आपके आएंगे उसके मुताबिक। तो अनफोर्सीन का तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बट हमने वैसे प्लानिंग उसमें दी हुई है एज पर आवर एकेडमिक कैलेंडर। सो खुदा ना खास्ता इफ एनी अनफोर्सीन क्लोजर ऑफ स्कूल्स हो जाता है तो उसके लिए वी आर हेल्पलेस। और जो एक्टिविटीज आपकी मिस आउट हो गई हैं जो आपने प्लान की हुई थी, obviously there's no point in rescheduling those, क्योंकि आपका टाइम तो अगर 1-2 दिन के लिए स्कूल क्लोजर तो आप करें, अगर लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए हो गया है तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए आप प्लान जो एक्टिविटीज आ रही है वही करें। लेकिन अगर 2-4 दिन के लिए स्कूल है तो फिर आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा क्लोजर नहीं है, इतना लंबा कोई। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है, ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि एपीएस मर्दान की जो स्ट्रेंथ है वो 7,000 प्लस है और डिफरेंट एक्टिविटीज आप लोग मेंशन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अब एचएसएससी के लिए प्लांटेशन जो वीक था या जो यूथ एक्टिविटीज थी ये अगस्त में हो गई, ठीक। इसी तरीके से मिडिल सेक्शन का जो या जूनियर सेक्शन का जो प्लांटेशन वीक वगैरह है तो वो डिफरेंट टाइम पे है। सो फिर ये एक सीसीए कोऑर्डिनेटर के लिए होल स्कूल प्रोग्राम के लिए अगर हम एक सीसीए कोऑर्डिनेटर लेते हैं, एक ही रजिस्टर हम कैरी आउट करते हैं, सो हाउ इज इट पॉसिबल टू मेंशन ऑल द थिंग्स, क्योंकि टाइम भी डिफरेंट है और डेटा भी अलग आएगा ऑब्वियसली। उस टाइम पे एंटर करें ना, अगर वो एक एक्टिविटी अगस्त में हुई है, दूसरी सितंबर में हुई है तो आप उसको सितंबर में एंटर करें, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये तो नहीं कहा आपने एक साथ ही सारा डेटा एंटर करना है, जो एक्टिविटी जिस वक्त होती जा रही है वो साथ साथ आप एंटर करते जाएं। दिस इज द रीजन वी टेल यू कि भी आप उसमें बहुत रेगुलर हो एंटरिंग द डाटा। अगर आप एक दिन बैठ के सारी सितंबर की, अगस्त की और अक्टूबर की एक्टिविटीज एंटर करें तो ऑब्वियसली यू विल बी इनकाउंटरिंग लॉट ऑफ वो। आपकी अगर एक एक्टिविटी खाली जूनियर में हुई है, सितंबर में हुई है, उसको सितंबर में ऐड कर दें। फिर आपकी मे बी 2 वीक्स के बाद सीनियर में हो गई तो आप सीनियर वालों की डेट जो है वो मेंशन कर दें।
तो आई डोंट थिंक सो और ये एक्टिविटीज जो डिफरेंट डेट्स पे आ रही होती है ना, उसका रीजन होता है। अगर आप सारे कैलेंडर साथ में रखे हैं प्री के सॉरी जूनियर, मिडिल और सीनियर के, तो आपको खुद भी पता होगा कि उनके क्लासेस का स्टार्ट टाइम डिफरेंट होता है, उनके एग्जाम स्केड्यूल्स डिफरेंट होते हैं। तो वो हमने खुद से अलग डेट्स पे नहीं दी हुई होती, वो इसलिए दी हुई होती है कि वो स्केड्यूल ही उनके डिफरेंट होते हैं मिडिल और जूनियर से। इसलिए वो एक्टिविटीज उनके साथ प्लान करना भी चाहे तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वहां पे बच्चे फ्री हैं तो सीनियर वालों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, सीनियर वाले फ्री हैं तो जूनियर वालों की चेक पॉइंट्स चल रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। और ये ऑलरेडी बुकलेट में भी मेंशन है, और हमने आपको वैसे भी बताया था कि एनी स्कूल हैविंग स्ट्रेंथ मोर देन 2500 दे कैन हैव एन असिस्टेंट सीसीए कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो आपकी अगर 7000 स्ट्रेंथ है। मैम, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी 7000 प्लस स्ट्रेंथ है। आपने कहा था कि 2500 से स्ट्रेंथ जब एक्सीड होती है तो आप असिस्टेंट सीसीए रखते हैं। इसी तरह हमारी पर सेक्शन इसी तरह 2000 प्लस या 2500 स्ट्रेंथ आ रही है पर सेक्शन। तो अगर इज इट पॉसिबल कि हम ऐसे कर लें कि हम हर एक सेक्शन में एक असिस्टेंट सीसीए रखें और जितने हमारे ये रजिस्टर्स हैं ये हम सेपरेटली फिल करें, क्योंकि एक रजिस्टर एक सीसीए के सेपरेट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो फिर किसी एक स्कूल को हम ये वेवर नहीं दे सकते। ठीक है, असिस्टेंट आप रख लें, उसके साथ आप टीचर्स को एंगेज कर सकते हैं, आप अपनी टीम बना सकते हैं, आपके पास स्टूडेंट काउंसिल है, आप उनको एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असिस्टेंट आप रख सकते हैं। मल्टीपल रजिस्टर्स नहीं हम डिस्करेज करेंगे, और इस तरह की चीज अगर एवेल्यूएशन में विटनेस होगी तो फिर उसके आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। बिकॉज इस दफा क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खुद से भी हमें होता था कि मल्टीपल रजिस्टर्स हैं और मल्टीपल डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, इतनी ज्यादा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, और बिला वजह इतने सारे रजिस्टर्स आप लोगों ने पाइलअप किए हुए होते हैं, तो हम उसको डिस्करेज करते हैं कि वो उससे वर्कलोड भी बढ़ता है। तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोऑर्डिनेटर नहीं मेंटेन करना है रिकॉर्ड, तो असिस्टेंट भी जो है जो एक्टिविटी कंडक्ट करवा रही है वो रिकॉर्ड सबमिट करवाए। तो देखें कोई ऐसा रिकॉर्ड हमने नहीं मांगा हुआ, दो चार वर्ड्स ही लिखने हैं, तो हमने उसके अंदर आपसे पूरी रिपोर्ट्स ही मांगी हुई, तो आई थिंक वो इतना मुश्किल नहीं है, तो वो इजीली एंटर हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन APSC को हार जी, प्लीज आप म्यूट योर माइक। जी प्लीज गो अहेड विद योर क्वेरी। APS cohort, can you hear us? Okay, we can take question from जिन लोगों से क्वेश्चन जिनके क्वेश्चन आंसर हो गए, वो अपना जो उन्होंने हैंड रेज किया है उसको प्लीज डाउन कर लें। मिसेस बगल आ रहा है जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारे स्कूल में 5 विंग्स हैं, 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो क्या हम हाउस इंचार्जेस हर सेक्शन से डिफरेंट बना सकते हैं या नहीं? ओवरऑल पूरे स्कूल के एक हाउस इंचार्ज होना चाहिए? देखिए, ये मेरा ख्याल है अभी कुछ 6th टाइम हम ये बात बता रहे हैं कि देयर विल बी ओनली वन सीसीए कोऑर्डिनेटर, वन हाउस इंचार्ज फॉर ईच इंचार्ज, ईच हाउस। ठीक है, और उसमें आप असिस्टेंट हाउस इंचार्ज रख सकते हैं अगर आपकी स्कूल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज रेफर टू द पॉलिसी हैंडबुक। जी APS चकलाला गर्ल्स एंड बॉयज जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। My question is that can you please speak a bit louder? Please come closer to the mic and ask the question. सीसीए जो क्लब्स बने हुए हैं ऑलरेडी, हमारे पास जो सीसीए कैलेंडर आता है, एकेडमिक कैलेंडर आता है, वो ऑलरेडी सेचुरेटेड है सीसीए एक्टिविटीज से। जब हम उसमें क्लब्स बना लेते हैं, ऑलरेडी हम मेकर स्पेस के 5 क्लब्स या 4 क्लब्स बना रहे हैं ऑलरेडी वर्किंग में, वो भी वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ पॉसिबल है। जब हम सीसीए क्लब एक्टिविटीज हम उसको अलग प्लान करेंगे तो व्हेन टू कंडक्ट दीस एक्टिविटीज, क्योंकि ऑलरेडी सीसीए कैलेंडर में आप देखिए जैसे नेशनल सॉन्ग कंपटीशन आज था, वो किसी क्लब के अंडर, क्योंकि जब हम क्लब एक्टिविटी करते हैं तो वो पूरा विंग क्लब वाइज डिवाइड होता है, वो क्लब एक्टिविटीज कर होता है। तो हाउ वी मेंटेन दिस स्केड्यूल, बोथ सीसीए क्लब भी हम कर रहे हैं, मेकर स्पेस क्लब भी हम कर रहे हैं, प्लान एक्टिविटी सीसीए भी कर रहे हैं, तो
पॉसिबल नहीं लगता। प्लान्ड एक्टिविटीज है ना आपकी, जो हमने उसके अंदर कैलेंडर में दी हुई है, उसको मैंने पहले ही आपको बताया कि वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, जो हाउस कॉम्पिटिशन के अलावा और जो आपके मेकर स्पेस के उसके अलावा जो हाउस कॉम्पिटिशन है वो तो आपके क्लब्स के अंडर ही आ जाएंगे। ठीक है, क्लब्स की जो एक्टिविटीज हैं उन्हीं को आप इंटर हाउस कॉम्पिटिशन उनके ही करवाएंगे। जो आपकी रूटीन की है जैसे ट्री प्लांटेशन है, कम्युनिटी सर्विस है और ये इस तरह की एक्टिविटीज हैं, उसमें मैंने पहले ही बताया है कि उसमें आपने बच्चों के साथ अवेयरनेस और इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा करवानी है। उसमें आपने कॉम्पिटिशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर तो करना नहीं है। ट्री प्लांटेशन है, कम्युनिटी सर्विस है, आपका एंटी ड्रग अवेयरनेस वीक है, या इस तरह की चीजें जो हैं वो आपकी मॉर्निंग असेंबली अवेयरनेस या बच्चों के साथ अवेयरनेस सेशंस हो जाते हैं, गेस्ट स्पीकर्स आप बुला सकते हैं, या स्कूल में जो आपके प्रिंसिपल हैं या सीनियर सेक्शन हेड हैं वो बच्चों को उसके ऊपर लेक्चर्स दे सकते हैं। तो जो आपकी क्लब एक्टिविटीज हैं, हाँ उसमें आपको प्रेपरेशंस इन्वॉल्व होती हैं, जो रूटीन की एक्टिविटीज है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होती। तो आप इसको सेंसिबली अगर प्लान करें तो ये इजीली मैनेजेबल है, उसमें इतना इशू नहीं है। जो आपको सीसीए क्लब पीरियड सीसी पीरियड दिया हुआ है ना, उसके अंदर आप अपनी एक्टिविटीज की प्रेपरेशंस करवाइए। और जो फॉर एग्जांपल सितंबर का अगर आप मंथ देखें, उसमें रबियुल अव्वल इंटरनेशनल पीस डे, इंटर हाउस स्पोर्ट कंपटीशन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, योम कौमे डिफेंस डे, ये सब सीसीए में। इसके अलावा इंटरनेशनल लिटरेसी डे में तो आपने कुछ भी नहीं करना ना, आप बच्चों से उस दिन आप मॉर्निंग असेंबली करवाइए, बच्चों से कहें, आप घर से बेशक आप होमवर्क में एक एक्टिविटी दे सकते हैं कि लिटरेसी डे पे वो बना लाएं, कोई पोस्टर बना लाएं, ठीक है, कोई ड्राइंग बना लाएं, ठीक है, और क्लासरूम में आप लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करें। ठीक है, ईद मिलाद नबी बिल्कुल एक बड़ा इवेंट है, उसमें इंटर हाउस नात कंपटीशन हमने दिया हुआ है, नात एंड किरात कंपटीशन, उसके लिए आप करवाएंगे प्रिपरेशन। दूसरा इन्होंने एक और क्या मेंशन किया इसके अंदर, स्पोर्ट्स कंपटीशन। स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स वैसे एग्जाम डिपार्टमेंट देखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी देखिए पूरे का पूरा स्कूल तो इन्वॉल्व नहीं होता ना, उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इट मींस जो पीसीए की एक्टिविटी जैसे अक्टूबर के मंथ में भी बहुत ज्यादा सीसीए टीचर डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक, फूड डे, These are all awareness days. These are all awareness days. आपने इसके अंदर कोई एग्जॉस्टिव एक्टिविटीज नहीं करवानी बच्चों से। इट मींस ये एक्टिविटीज नॉट मैंडेटरी हम सीसीए पीरियड में कराएं, हम सीसीए पीरियड में क्लब एक्टिविटीज कराएं। जी बिल्कुल, आप सीसीए पीरियड्स को यूटिलाइज करेंगे कॉम्पिटिशंस के लिए, क्लब एक्टिविटीज के लिए, और जो बाकी डेज हैं, टीचर्स डे पे आप बच्चे आपको पता है हमेशा से बच्चे कार्ड्स बनाते हैं, घरों से बना के ले आते हैं। टीचर्स डे पे मॉर्निंग असेंबली हो जाएगी, आप स्कूल डिस्प्लेज लगा लेंगे, ठीक है, क्लास में बच्चों से आप क्लास में 5-10 मिनट्स निकाल के बच्चे जो है टीचर्स की इंपॉर्टेंस पे या उस पे वो कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये सेंसिटाइजेशन है बच्चों के लिए, वर्ल्ड फूड डे फूड की इंपॉर्टेंस पे। डोंट यू थिंक सो कि अगर हम ये एक्टिविटी 5 to 10 मिनट रेगुलर पीरियड में निकाल के डेली बेसिस पे या वीकली भी कर रहे हैं, तो हम टीचिंग पीरियड टाइम को रिड्यूस देखिए वो आपने हर रोज तो नहीं निकालना ना, वो आपने हर वक्त तो नहीं निकालना। और फिर आप देखें ये चीजें जो हैं आपकी एकेडमिक्स के साथ, आपकी जो करिकुलम है उसके साथ भी हर वक्त अलाइंड है। क्या हम हर वक्त साथी की इंपॉर्टेंस पे बात नहीं करते कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम डिफरेंट उस पे, ये सिर्फ सेंसिटाइजेशन है कि बच्चों को अवेयरनेस हो कि एक टीचर्स डे है, मदर्स डे है, इस तरह के इवेंट्स हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो हमने ये जितने इंटरनेशनल डेज हैं, मैंने पहले भी बताया था, इनको आप मॉर्निंग असेंबली में कैटर करें, और एक्टिविटी जो है वो एक छोटी सी एक्टिविटी करवा लें कि आप बच्चे टीचर्स के लिए कार्ड बना के ले आते हैं, ग्रेटिट्यूड होता है टीचर्स की तरफ, वो उनको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू टीचर, या इस तरह से कि आप बच्चे के जहन में डाल रहे हैं कि टीचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसमें आपने कोई पूरा दिन स्पेंड नहीं करना। I totally understand, but my point is only that कि for example अगर टीचर डे हम सेलिब्रेट करें, सीसीए पीरियड को हम इतना इफेक्टिव यूटिलाइज करते थे कि ये सारे डेज हम उसको अच्छे से 40 मिनट में हर बच्चा इन्वॉल्व भी हो रहा है, टीचर उनको इंटरेक्ट भी कर रहा है और उसका पर्पस जो है वो क्लियर है। लेकिन अगर हम उसको इतना श्रिंक कर देंगे 5 to 10 मिनट और फिर हम सीसीए क्लब अलग बनाए, मेक स्पेसिफिक क्लब, मुझे लेकिन दैट इज जस्ट अ सजेशन, मैंने ये नहीं कहा कि आप टीचिंग पीरियड को कॉम्प्रोमाइज करें, दैट इज अ सजेशन कि आप ड्यूरिंग लेक्चर 5 मिनट की बात तो क्लास टीचर कर ही सकती है। आई थिंक इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आप 5 मिनट बच्चों को इस चीज पे बच्चों से बात कर रहे, या वो आपको उस पीरियड में कोई कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं या आपको थैंक यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई डेली की वो नहीं है कि डेली का आपका क्लासरूम टाइम सफर हो रहा है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जस्ट लीव इट टू मॉर्निंग असेंबली, दैट्स ऑल। थैंक यू। ये मिस समरी ना उसका
जी मिस सबरीना मुश्ताक प्लीज अनम्यूट योर माइक। Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. Please come closer to the mic. आपकी बहुत ज्यादा एको आ रही है, प्लीज यू आर नॉट ऑडिबल। आप या तो अपनी क्वेरी जो है वो टाइप कर दें। Next participant, APS Gadi Dupatta. We have a query from APS Gadi Dupatta. Can you please unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम मैम, हम एपीएस गढ़ी दुपट्टा से, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सीसीए कोऑर्डिनेटर है उसकी पीरियड एलोकेशन क्या है, और आपने बताया कि सीसीए कोऑर्डिनेटर स्कूल का एक ही होना चाहिए, तो वो एक ही होगा तो फिर उसके टीचिंग पीरियड कितने होने चाहिए? और दूसरी बात ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो आप I have told this I think 4th time, so I'm not going to tell it again. जी ये बिल्कुल Please refer to the policy handbook. APS Gadi Dupatta की क्वेरी थी चैट बॉक्स जी आपकी चैट बॉक्स में हमने क्वेरी पढ़ के आंसर कर दिया। So please refer to the policy handbook now. Be attentive क्योंकि ये क्वेरीज ऑलरेडी आंसर हो चुकी हुई हैं, तो हम न्यू क्वेरीज देंगे जो कि ऑलरेडी आंसर नहीं हुई। ओके मैम, थैंक यू। जी once again Global Academy. जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। वालेकुम मैम, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे हाउस जितने भी प्रोग्राम्स है, वैल्यूज एजुकेशन है, ग्रीन पाकिस्तान है, रीड प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम है, जिस तरह आपने कहा कि सारे रजिस्टर जो होंगे वो एक ही रजिस्टर होगा, एक ही सीसीए इंचार्ज होगा, सो ये फाइल्स भी मैम हमारा होल स्कूल के लिए एक ही फाइल्स होंगे सेक्शन वाइज या सेक्शन वाइज फाइल्स होंगे? नो, हम एक ही, ये भी मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ कि एक ही रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे। अब मैं बिल्कुल आखिरी दफा बता रही हूँ, ठीक है, प्लीज बी अटेंटिव कि एक ही रजिस्टर है। हाउसेस के लिए भी, हर हाउस के लिए एक रजिस्टर है। सीसीए कोऑर्डिनेटर भी एक ही होगा अगर आपकी स्कूल स्ट्रेंथ 2500 से कम है। इफ इट्स मोर देन 2500 स्टूडेंट्स तो आप असिस्टेंट सीसीए कोऑर्डिनेटर रख सकते हैं, बट फॉर ईच क्लब, ईच हाउस and for CCAs and for CCA clubs and makerspace programs, only one register will be maintained. Multiple registers junior level पे अगर होंगे और evaluation team आएगी तो उस चीज के आपके marks deduct होंगे। Duplication of record is highly discouraged from now onwards. We will move towards YouTube chat. यहाँ पे query है from I am Principal Mohammed Hussain Shahid Garrison Bahawalpur 31 I have 3 primary, middle and middle section, but the total students are 145. How to make houses? Is it a new school and for which level it is? whole school के ना। Sorry, मुझे दोबारा से देंगे, जरा देखने देंगे। I am Principal Garrison Bahawalpur 31 I have pre-middle section 145। Okay, I think this is a new school, तो आप जितने भी हैं उसी में हाउसेस बना लें। 4 हाउसेस में जितनी स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड कर लीजिए, उसमें से निकल जाएगा। Same Mohammed Hussain Shahid Garrison. I have 9 teachers. Kashmala, okay, Kashmala, can we hear you? Take 30 minutes each. How to select? जी मिस Kashmala अच्छा, they are saying कि सिर्फ 145 स्टूडेंट्स हैं और 9 टीचर्स हैं, इनके वर्कलोड इस, देखिए इस पे तो स्कूल प्रिंसिपल को और मैनेजमेंट को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज दे नीड टू हायर मोर टीचर्स। और 33 पीरियड्स तो वैसे भी बहुत एक्सेसिव हैं, तो ये तो हम वैसे भी बहुत डिस्करेज करते हैं इसको। सो इफ द प्रिंसिपल इज अराउंड तो प्लीज लुक इनटू द मैटर, द वर्कलोड इज वेरी मच अनजस्टिफाइड। जी, can we speak to RD 31 को? जी सर, RD Bahawalpur region. Sir, please unmute your mic. जी, RD Bahawalpur region, please unmute your mic, sir. मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी पैसेज में ही रिप्लाई कर दी, इसलिए कोई जवाब नहीं मांगी तुम्हारे क्वेश्चन। थैंक यू। Sir, we cannot hear you. Your voice is not clear. Sir, you are not audible.
मैम आपने मेरा मैसेज में ही पढ़ के सुना दिया था और उसके आपने रिप्लाई कर दिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, बस अभी जो जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये एमएचएस इसमें ये इज इट अ न्यू स्कूल? इसमें अभी स्कूल स्ट्रेंथ जो है वो काफी कम है। मैम ये ड्यू नहीं है, 5-6 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका अपग्रेड नहीं हो सका, इसलिए ये और इसलिए लाइकली अभी और 1-2 साल ही इम्प्रूव हो रहा है। तो फिर दूसरा ये कि वहाँ पे हमें इंटरनेट के भी इश्यूज है, फिर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसकी इनकम कोई नहीं है, स्टूडेंट्स बड़े कम है, तो वो इसकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो ऑनलाइन ज्यादा नहीं कर सकते। और फिर उनका क्लब जो है रेगुलर नहीं है, वो पहले आर्मी पर्सन था, अभी उन्होंने जो है एक और को भर्ती किया, तो इंशाल्लाह अभी कुछ उनकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। Okay sir, please look into the matter because they are saying the workload is unjustified, so if more teachers could be hired और थोड़ा इसको workload justify हो जाए तो we'll appreciate that. Thank you sir. थैंक यू मैम। थैंक यू जी। APSNC को हार जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर हेलो। जी जी सर, प्लीज आस्क क्वेरी सर। सर बात कर रहा हूँ सर, APS कोड से। तो एक चीज कंफर्म हो, जूनियर और सीनियर सेक्शन के सीसी कोऑर्डिनेटर होगा उसकी। वॉइस इज ब्रेकिंग सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, क्लियर है सर? जी सर एक क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर कर दिया था कि सीसी कोऑर्डिनेटर होगा मिडिल जूनियर सीनियर सेक्शन के लिए। PIS इस पे यूजर अकाउंट भी एक ही बनेगा? ऐसा ही है। हमारा ये है कि हमारा गर्ल्स कैंपस अलग से है, तो उसके लिए फिर हम अलग CCA कोऑर्डिनेटर की ID बनाएंगे। गर्ल्स कैंपस आपका अलग है तो ऑब्वियसली कैंपसेस के लिए अलग कैंपस है, विंग ही आपका अलग है तो उसमें अलग से CCA कोऑर्डिनेटर होगा। दैट इज अंडरस्टूड कि आपका अगर कैंपस ही अलग है तो ऑब्वियसली वो सारा कुछ फिर अलग होगा उस कैंपस के लिए। एक्चुअली मैम हमारा जो DBA है वो एक ही है, क्योंकि वो एज अ स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पे, एज अ सेक्शन रजिस्टर्ड है, तो इसलिए ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल सेम है? जी जी प्रिंसिपल सेम। प्रिंसिपल सेम है तो ठीक है, मतलब आपके दो CCA कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक गर्ल्स विंग के लिए और एक बॉयज विंग के लिए, तो आप सेपरेट अकाउंट। जी वो इसलिए कि आप गर्ल्स और बॉयज की एक्टिविटीज एक साथ में नहीं करवा सकते ना, तो आप फिर उसको सेपरेट ही रखिए। स्कूल एक ही आपका होगा, ठीक है, बट उनके अकाउंट्स जो है CCA कोऑर्डिनेटर्स के वो डिफरेंट बनाएंगे। ये एंट्री तो वैसे भी DBA ने नहीं करनी है, तो CCA कोऑर्डिनेटर या जो भी पर्सन है उसने करनी है। सो अगर दोनों कैंपसेस अलग मेंटेन हो रहे हैं तो इट्स फाइन, यू विल जस्ट हैव टू मेक द सेपरेट अकाउंट, आपका इतना ही रोल है उसके अंदर। ये कोऑर्डिनेटर जो है आपके अगर बेशक वो एक ही है, इसके वो क्या करेंगे, बॉयज विंग को भी अकाउंट बनाकर दे देंगे और गर्ल्स को भी अकाउंट बनाकर उनको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, ये हमारी CCA कोऑर्डिनेटर। और जितने भी स्कूल्स हैं अगर उनके गर्ल विंग्स अलग हैं और बेशक एक उसके कैंपस के अंदर है लेकिन दे आर लोकेटेड लाइक सेपरेटली, ठीक है, और उनका वो सेपरेट, अगर प्रिंसिपल्स भी उनके सेपरेट हैं या अगर प्रिंसिपल एक भी हैं लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट सेक्शंस हैं, तो उसमें अलग अलग CCA कोऑर्डिनेटर्स हो। अकाउंट्स आपके दो हो। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Ma'am, my question is that you have mentioned the workload of CCA coordinator, but as you have said that we would be having one house coordinator per house, like as Unity we would be having one house coordinator. So what would be the workload for house coordinators? Do we have mentioned the workload in the? No. Okay, we'll get back to you on that. ठीक है? Let us discuss that. Otherwise, इसका हम देख लेते हैं. House in charges का भी हम देख लेते हैं. Workload. Another question is that you would suggest that if you make some sort of WhatsApp group for all the CCA coordinators, so for the better coordination and communication of all the CCAs. WhatsApp group, वो क्या है WhatsApp group CCA coordinators के लिए? अच्छा ठीक है, हम इसको सजेशन को भी हम देख लेते हैं, we can look into it. पहले वाला. That's a good suggestion. And third question is that on Wednesday in zero class we usually conduct CCA activities, but as CCA activities there are certain like date, for example it's national song competition, if it is 14 August Day, we can make some other activities to plan for those. Yes, you are free to include as many activities as you want.
जो हमने लिस्ट दी हुई है ना, वो जस्ट हमने कुछ एक्टिविटीज दी है और हमने साथ लिखा हुआ भी हैंडबुक अगर आप पढ़ें कि स्कूल्स कैन ऐड एक्टिविटी रेलेवेंट एक्टिविटीज एज पर देयर डिस्क्रिप्शन। उसमें कोई वो नहीं है, आप अपनी एक्टिविटीज, आपको लगता है कि आपके पास हमारे से बेहतर कोई एक्टिविटी है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू ऐड एंड बी इनोवेटिव। For makerspace club, like we are supposed to make coordinators for that as well, like makerspace club in charge. So for that, the workload would be the same, like we would choose the teachers from our sections or from overall. No. I don't think so कि you need to. इस तरह तो फिर आपके सारे जो coordinators हैं, फिर आपके periods तो सारे के सारे less हो जाएंगे। देखिए जो आपकी coordination है, जो आपकी सारी overall responsibility है, वो CCA coordinator की है। She has to coordinate with all the house in charges, with all the makerspace and CCA club in charges, and then the principal and section heads as well. So उसको ये सारी की सारी coordination के लिए she needs more time. तो आप लोगों के लिए जो है there is no such thing as reduction in your teaching periods. आपके हाउस इंचार्जेस है ना, वो टर्म में सिर्फ एक ही मीटिंग करें एट द स्टार्ट ऑफ टर्म। तो एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोई एग्जॉस्टिव किस्म की मीटिंग करनी, तो रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन गोज विद द सीसीए कोऑर्डिनेटर। सो इस तरह हर किसी का वर्कलोड तो हम नहीं कम कर सकते, तो फिर तो सबका ही काम हो जाएगा। तो पूरा स्टूडेंट काउंसिल भी इन्वॉल्व है, It's the responsibility of the main CCA coordinator to maintain the online record as well as the registers. Like रजिस्टर्स में जो रिकॉर्ड एंटर हो रहा है वो हाउस इंचार्ज ही एंटर करेगा, बट यू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीसीए कोऑर्डिनेटर। ठीक है, सीसीए कोऑर्डिनेटर इंडोर्स जरूर करेगा उन रजिस्टर्स को, लेकिन हर हाउस इंचार्ज जो है वो ही और शी इज रिस्पांसिबल फॉर दैट हाउस एंड द हाउस रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेरी जी, APS कोड़ा We'll take 2 more queries. अगर आपकी queries already answer हो गई हैं तो प्लीज दोबारा मत पूछिए, और अगर नहीं आंसर हुई तो लेटर ऑन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू प्रिंसिपल एंड आरडी, या डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं research@apsacsecretariat.edu.pk पे। अब we are going to take 2 more queries, और अगर आपकी query already आंसर हो गई है तो मैं उसको मिस करके किसी और की query होगी। ठीक है जी, APS कोड़ा ACS Noor Mahal campus, how it will be. Please unmute your mic and ask your question. NMC Bahawalpur, you want to ask something? Am I audible? जी, I am talking from the NMC Bahawalpur. You have already answered the question, but we have a still confusion. We have one school and one principal, but we have 4 wings: girls wing, boys wing, APSACS, and college wing. So we have we have 4 CCAs for separately every wing. But you are saying that according to the decision. ओके, जो एप्सिस है ना वो आज की डिस्कशन जो है वो एप्सिस के लिए नहीं है। एप्सिस के सारा जो सीसीएस है एंड एवरीथिंग इज सेपरेट। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द रेस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, तो आपका जो कॉलेज है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स विंग भी अलग अलग है। बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठा है, कॉलेज ठीक है, ठीक है, कॉलेज विंग सेपरेट है, और स्कूल में जो है वो सेक्शन हेड्स अलग हैं, गर्ल्स विंग और बॉयज, और कॉलेज का विंग का भी सेक्शन हेड सेपरेट है। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है डिफरेंट दोनों ऑलमोस्ट 2500। जी, तो फिर तो इट्स मैनेजेबल। ठीक है, इसमें फिर इतना वो नहीं है। सिर्फ एक्टिविटीज का ये है कि आप गर्ल्स एंड बॉयज के साथ में नहीं कराना चाहते तो आप सेपरेटली करवा दें, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम आपको सेपरेट रजिस्टर्स और सेपरेट को करने का कहें तो दे कैन बी इजीली मैनेजेबल। ठीक है, थैंक यू जी, APS कोड़ा करें कौन से जी, प्लीज unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। This is Shahzeb from APS Engineers का कोड़ा हटन। सर क्वेश्चन ये है, जो कंफ्यूजन है कि जो हाउस इंचार्ज है वो आपने कहा कि एक ही होगा, एक ही हाउस का पूरे स्कूल के लिए, तो वो अगर फेथ हाउस का है तो लेट सपोज वो हम किसी जूनियर सेक्शन से ले सकते हैं या उसको सारे एक किसी भी सेक्शन से ले सकते हैं, किसी भी सेक्शन से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, और मैम दूसरा ये कि जो हाउस कैप्टन है तो वो फिर जूनियर सेक्शन में होंगे, इलेक्शन उनका और हाउस कैप्टन का उनके अलग होंगे हाउस कैप्टन? जूनियर के भी हाउस कैप्टन तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हर लेवल पे होते हैं हाउस कैप्टन। अच्छा, और मैम जो मिडिल और सीनियर विंग है हमारा, उसमें ये है कि गर्ल्स और बॉयज है, तो हमें गर्ल्स के अलग से मतलब 4 हाउस कैप्टन होंगे और बॉयज के अलग 4 हाउस कैप्टन होंगे, या किस हिसाब से, मतलब 2-2 होंगे, मतलब एक हाउस के मतलब 2 हाउसेस के गर्ल्स के हो जाए, 2 हाउसेस के बॉयज के हो जाए, कि नहीं गर्ल्स के 4 हाउस कैप्टन अलग होंगे? आपके स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है? 1500। तो नहीं, आप एक ही हाउस, आपका एक ही हाउस इंचार्ज होगा, और उसमें जो आपके विंग्स साथ साथ ही होंगे या बिल्कुल बहुत डिस्टिंक्ट हैं आपके विंग्स? नहीं, साथ साथ है मैम। नहीं, 1500 के लिए तो देयर विल बी वन सीसीए कोऑर्डिनेटर एंड हाउस इंचार्ज फॉर ईच, तो वो अपनी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे, तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ये अब आपकी डिस्क्रिप्शन है कि वेदर यू वांट टू डिवाइड के 2 बॉयज से ले लें 2 गर्ल्स से ले लें, ठीक है, ये आपकी अपनी इंटरनल प्लानिंग है, हम इसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, बट आपको रखना एक हाउस इंचार्ज ही जी, ठीक है। ओके, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन, आप चारों एक से ले लेते हैं, गर्ल्स से ले लेते हैं या बॉयज से ले लेते हैं, एज पर योर टीचर स्ट्रेंथ या अवेलेबिलिटी। सजेस्ट कि 2 गर्ल्स से ले लें 2 बॉयज से ले लें, ताकि वो एक कनेक्शन रहता है ना बॉयज एंड गर्ल्स के साथ, सब अलग से रहेगा, तो एक उसको आप जुडिशियली देखें। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेरी फ्रॉम APSC गर्ल्स पेशावर। जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। हम इसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, बट आपको जी प्लीज कम क्लोजर टू द माइक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, yes you are audible, please ask away. जी मैम प्लीज आस्क योर क्वेरी। Assalamu alaikum. I am CCA coordinator from APS Girls Peshawar. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी you are audible. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैंने ये पूछना था। Now you are not audible. Can you please type your query in the chat I have box? to ask the question कि जैसे आपने बताया कि ड्रामेटिक क्लब की जो ड्रामेटिक क्लब की जो Ma'am, you are not audible now. You are not audible. Can you please type your query? तो मैंने in the ये chat पूछना box? था कि ये जो ड्रामेटिक क्लब की जो मैंने रिपोर्ट लिखनी है या रिपोर्ट लिखवानी है, ये मेकर स्पेस रजिस्टर में लिखवानी है या सीसीए रजिस्टर में लिखवानी है? क्योंकि आप लोगों की सीसीए एक्टिविटीज जो एपसेक्स से प्लान होके आई हैं उसमें ड्रामा कंपटीशन भी अलग से मेंशन है, तो ये कंफ्यूजन है कि क्लब एक्टिविटी सिर्फ मेकर रजिस्टर में एंटर होनी चाहिए और सीसीए रजिस्टर में वो एक्टिविटीज एंटर होनी चाहिए, जैसे असेंबली प्रेजेंटेशन है या कोई और इंटर हाउस कंपटीशन है। देखिए, जिस चीज के साथ क्लब लग गया है तो वो क्लब्स वाले रजिस्टर में जाएगा ना, और बाकी सीसीए एक्टिविटीज जो आपकी रूटीन की हो रही है वो सीसीए रजिस्टर में जाएंगी। So thank you so very much for such a useful session. I hope आप लोगों को इससे काफी सारी आपकी ambiguities clear हो गई होंगी. Still, if you have any query, we are always available. Research and Holistic Development Department is always there to assist you in planning and conducting all the CCAs. आपकी कोई भी इसके बाद कुछ भी आपका है तो you can always write back to us. आपकी जो क्वेरीज है, सजेशन है रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे विल गेट बैक टू यू एंड विल ट्राई टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द सीसीए कोऑर्डिनेटर्स। और इसके अलावा जो है, थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत पर्टिनेंट क्वेरीज पूछी हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की क्लैरिटी भी बहुत सारी चीजों में हो गई होगी। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अब जो है वो कंटिन्यू करेगा, एक असेसमेंट और एग्जाम ने एक सेशन करवाना है विद द पीटीआईज और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आपके, तो सीसीए कोऑर्डिनेटर्स कैन लीव द चैट रूम एंड स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर या पीटीआईज जो हैं they should stay with the same link and exam department will continue with the
presentation or discussion on the sports policies they have revised. Thank you so much. Allah Hafiz from Research Department. All the best. We are not ending this session. Okay? We are just getting a 10 minutes break. उसके बाद हम इस session को continue करेंगे. ठीक है? And if you have missed any part of this session, तो video इसकी जो है वो available होगी YouTube के ऊपर. You can watch it later there. Yes, YouTube link has already shared with the RDs. See you after 10 minutes. Thank you.
Assalamu alaikum everyone. Welcome to APSACS Sports Program Orientation Session 23-24. I am Maria Hadid, Deputy Director of Examination and Head of APSACS Sports Program in APSACS Secretariat. The main purpose of today's session is to share with you the reason for the condensation of sports plan for this particular year and the revision of the APSACS sports plan for the upcoming sessions. That is the introduction of biennial sports plan. So आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, anything that is not yet clear to you or you want further clarification from our end, वो आज सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So once again, welcome to the session and let us formally move towards the main things. The agenda of today's orientation session is to share with you the revised plan, to share with you the updated APSACS sports policy, the procedures, the implementation guidelines regarding this year's sports events, and the preparation regarding upcoming federal board sports competition. Moving towards the first main part, that is the APSACS sports program, the overall sports program. There is a change of plan for this particular year, and the reason, there is a reason behind that. हमने अगर स्पोर्ट्स प्लान को कंडेंस किया है या कुछ सेलेक्टेड स्पोर्ट्स इस साल के लिए किए हैं तो उसका एक रीजन था और उसका रीजन ये है that federal board has shifted the examination slot from April, end of April to the March. So उस एक महीने की शिफ्ट की वजह से, बल्कि to be very honest, more than 1 month shift की वजह से there is a lot more burden towards the syllabus coverage rather than working on or provision of the sports slots to the schools. So we have to ensure the provision of ample time period for the syllabus coverage in order to prepare our students for the upcoming board examination. Besides that, the condensed sports plan also ensures the coordination among the schools for the smooth conduction of inter-school sports competition. We have also shared with you the necessary details in the form of information and recording of the events and its sharing with the Secretariat in the form of post-event report format. In the letter, we have also shared with you the federal board events preparation and participation guidelines, that how schools are going to work for this particular area. So ये सारी चीजें इस साल के condensed sports plan का हिस्सा होंगी. जी. Next slide. आपके साथ एक लेटर शेयर किया गया था 15th of August को, और उस 15th of August के लेटर के अंदर हमने आपके साथ डिटेल में एक बात शेयर की थी कि आपने इस साल तमाम स्पोर्ट्स that is 15 स्पोर्ट्स को नहीं कंडक्ट कराना, only 11 into sports will be conducted, और उसका जो मैंडेटरी लेवल है, मैंडेटरी लेवल का मतलब कि वो आपने हर हालत में कंडक्ट कराना है, that is इंटर स्कूल लेवल. इसके आगे इंटर रीजनल और इंटर जोनल कॉम्पिटिशंस वो हमने मैंडेटरी नहीं किए हैं. अगर कोई रीजन ये समझता है कि they are prepared, their syllabus is covered, their students are abreast with the latest things और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटर रीजनल कॉम्पिटिशंस करवाने तक, तो they are more than welcome to conduct those competitions. लेकिन हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस नहीं हुई. लेकिन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस आप लोगों ने जरूर कराने हैं. उसकी वजह ये है that sports is an integral part of development and the skill development inside a student. आप सब जानते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 मेन लेवल्स हैं, that is the cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. जो psychomotor domain होती है ना, that is related to the hands, वो movement से related है, वो skill development बच्चों की practical application से related है, and sports comes into that domain. जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं वो एकेडमिक्स में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेते हैं, और स्पोर्ट्स करने वाला बच्चा हेल्दी होता है, उसका माइंड हेल्दी है, उसकी बॉडी हेल्दी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड. सो कम से कम इंटर स्कूल लेवल तक इन स्पोर्ट्स को जरूर कंडक्ट कराएं और इसकी रिपोर्ट हमारे साथ आप शेयर करें. जी नेक्स्ट वन. लिस्ट ऑफ इवेंट्स जितने भी हमने आपको दिए 11 गेम्स इस लेक्चर के अंदर, जो 15th of August को आपके साथ शेयर हुआ था, उसके अंदर जो 11 गेम्स रखे हैं, दे आर ऑल अलाइन्ड विद द अपकमिंग फेडरल बोर्ड स्पोर्ट्स कंपटीशन. ठीक है. उसको अलाइन करने का मकसद ये है कि साथ साथ साइड बाय साइड आप साथ APSACS की स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, साइड बाय साइड आपका बच्चा बोर्ड के स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर होता है. ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी स्पोर्ट्स तो करवाते रहे, लेकिन जब बोर्ड में स्पोर्ट्स कंपटीशन की बारी आए तो हमारे बच्चे ने वो प्रैक्टिस ही ना की हो. सो ऑल दीज गेम्स 11 गेम्स आर अलाइन्ड विद फेडरल बोर्ड. इन गेम्स को करवाना मैंडेटरी है.
इसके अलावा अगर कोई गेम आप करवाना चाहते हैं अपने इंटर स्कूल लेवल के ऊपर, यू वांट टू इंट्रोड्यूस इट इन योर रीजनल स्पोर्ट्स, तो आप उसको बिल्कुल करवा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये 11 स्पोर्ट्स मैंडेटरी है बिकॉज फेडरल बोर्ड भी इन्हीं लाइंस के ऊपर अपने कॉम्पिटिशंस करवाएगा। जी, दिस इज द फॉर्मेट दैट वी हैव शेयर्ड इन द लेटर फॉर द कंपाइलेशन ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें तमाम आरडी, ऑल आरडी ऑफिसर्स आर सपोज्ड टू शेयर विद अस द रिजल्ट्स। आपकी स्पोर्ट्स से फॉर एग्जांपल 11 स्पोर्ट्स हैं, तो आप इस चार्ट के अंदर 11 के 11 स्पोर्ट्स एंटर करेंगे, होस्टेड बाय, यहाँ पे आप स्कूल का नाम मेंशन करेंगे जो कि इस इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन को होस्ट करेगा। देन द विनर, रनर अप एंड थर्ड पोजीशन स्कूल, नाम लिखेंगे स्कूल का, और ये आप डाटा हमारे साथ शेयर करेंगे। वन मोर थिंग, आप जिस वक्त ये डाटा कंपाइल कर रहे होंगे तो विनर स्कूल्स में से या इवन अगर रनर अप या थर्ड पोजीशन होल्डर्स में से भी अगर कोई बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर, तो आप उसका नाम भी हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, सो ये रिकॉर्डिंग आपने एज अ पीटीआई या एज अ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि ये डाटा आप मेंटेन करते जाएं और टाइमली अपने आरडी के साथ शेयर करें। एज एन आरडी 19 regions हो चुके हैं हमारे पास, so as an RD it is the responsibility of RD to compile the data of the complete region for inter-school sports competition, और फिर ये डाटा AME डिपार्टमेंट के साथ उनकी ईमेल एड्रेस के ऊपर within 10 days after the conduct of event आप हमारे साथ शेयर करें। कुछ रीजन से हमें एक क्वेरी आ रही है कि अभी सितंबर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से स्पोर्ट्स नहीं हो सकती, तो अगर हम इनको शिफ्ट कर ले विल दैट बी अप्रोप्रिएट। सो फॉर्मली मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन विद इन अ रीजन होते हैं, हर रीजन के अपने स्कूलों के बीच में होते हैं। सो एज एन आरडी यू हैव गॉट द डिस्क्रिप्शन, या एज अ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर आपके पास इख्तियार है कि आप एक सूटेबल स्लॉट जहां पर बच्चों की एकेडमिक्स या कोई और को-करिकुलर एक्टिविटी या कोई ट्रेनिंग या कोई और इस तरह की एक्टिविटी उसको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन को, तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट अ सूटेबल डे टू योर आरडी, और आरडी हमारे साथ डिस्कस करते हुए उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि ये विद इन द रीजन है, दूसरे किसी रीजन का इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेट्स की कोइंसाइडेंस नहीं है, तो इसलिए कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपने कि बच्चों की एकेडमिक्स, बच्चों के एग्जाम, उनके क्लास असेसमेंट्स या उनके किसी किस्म के टेस्ट वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, स्पेशली फॉर द सीनियर स्कूल, ये बात मैं कर रही हूँ, उनके एकेडमिक्स बिल्कुल भी किसी नहीं होने चाहिए कॉम्प्रोमाइज। So this you all have to see, और अगर आप इसके अकॉर्डिंगली a week earlier or before that अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है। Now the next one, the upgraded sports policy, आप सबके लिए आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी दे दी थी, शेयर की हुई है। For the first time ever हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी को चैप्टर वाइज रिवाइज कर दिया, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी इस साल इंट्रोड्यूस की गई है, और इसको हमने लेटर के थ्रू भी शेयर किया है, व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर दिया, और AIS पोर्टल पर भी अवेलेबल करवा। जी नेक्स्ट पे, सो यहाँ पर आपके पास आई थिंक 6 और 7 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, 7 चैप्टर्स आ देयर, और हर चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर डिटेल्स दी गई हैं। Chapter 1 is introduction, that is the basic thing about the sports, उसमें क्या है, sports क्या होती है और APSACS की centralized policy क्या है। The second chapter is about the vision, mission, the challenges that we face in the sports, the objective of the sports, centralized sports competition, whosoever are the stakeholders, sports coordinators और इनका क्या role responsibility होगा, resources, management क्या है, budgeting कैसे होगी, and result compilation along with the pictorial evidences. So ये सब चीजें चैप्टर नंबर 2 में पॉलिसी गाइडलाइंस के अंदर हमने शेयर किया। चैप्टर नंबर 3 में चैंपियनशिप गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके अकॉर्डिंगली जोनल चैंपियनशिप होती है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को डिटेल में शेयर किया गया है। आरडीज को, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर्स को, पीटीआईज को और इवन जोनल कोऑर्डिनेटर्स को उनकी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज बताई गई हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने पॉलिसी के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस शेयर की हैं कि कौन कौन से आरडीज की क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी, होस्ट आरडी क्या क्या चीजों को ओवरसी करेगा, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे जोन के अंदर वो किस चीज को शेयर करेंगे, बजट किसके उसमें आएगा, डोमेन में फॉल करेगा, रीजनल के सर्टिफिकेट्स, रीजनल की सर्मनी, जोनल की सर्मनी, जोनल के सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स, हर एक की रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी को हमने क्लियरली मेंशन किया है इन चैप्टर्स में। जी अगर आप चैप्टर नंबर 2 पर आएंगे तो चैप्टर नंबर 2 में आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है।
इनिशियली ये तमाम चीजें मौजूद थी, मगर अब हमने इनको कैटेगोरिकली मेंशन किया है ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर 3 कैटेगरीज फॉल करेंगी। नंबर 1 इज द रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। इसके अंदर वो तमाम स्पोर्ट्स जो गेम पीरियड्स में बच्चे खेलते हैं या जिसको वो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। ठीक है, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। सो वो जो है हम आपके लिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए। इन रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के अंदर इट इज डिस्क्रिशन एट योर एंड। अगर आप इनके अलावा भी कोई गेम्स करवाना चाहते हैं गेम्स पीरियड में बच्चों के साथ, या स्पोर्ट्स डे पे कुछ एक्स्ट्रा भी कंडक्ट करवाना चाहते हैं, इट इज ऑलवेज एट योर एंड। आप अपनी फैसिलिटीज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को या मैनेजमेंट को सामने रखते हुए यू कैन ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट द गेम्स। फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज में आपको मालूम है इस दफा हमने समर वेकेशन में भी बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करवाएंगी, और ये एक्टिविटीज जो थी दीज वर रिलेटेड टू द फिजिकल फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सो दिस यू हैव टू इंश्योर। एंड द लास्ट वन इज द चैंपियनशिप गेम्स। ये गेम्स जो हैं वो गेम्स हैं जिसमें जोनल चैंपियनशिप होगी, और ये अब आपको मालूम है कि भी हमने जो लेटेस्ट प्लान निकाला है वो बाइनियल हो चुकी है, यानी 2 सालों में पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 15 इंटू गेम्स हैं जो मैंडेटरी होंगी। इसके अलावा अगर आप अपने लेवल के ऊपर कोई गेम्स में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या बच्चों में खिलवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन चैंपियनशिप इन्हीं 14-15 गेम्स के दरमियान में ही। These are the roles and responsibility of sports coordinator and PTIs. उनका यूनिफॉर्म, उनका कॉन्डक्ट, उनके से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस, ये तमाम चीजें यहाँ पर मेंशन है। कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट, रीजनल, जोनल, इंटर स्कूल, इंटर हाउस, ये सारे कॉम्पिटिशन के लिए भी फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, और पिक्टोरियल एविडेंसेस से रिलेटेड भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपको अगर देखें तो आपको बहुत क्लियरली मेंशन है दैट हार्ड कॉपी ऑफ पिक्टोरियल एविडेंसेस जिस भी लेवल पर हो, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। Try to share the soft copy of the pictorial evidences because यहाँ सेक्रेटेरिएट में भी हम लोग सॉफ्ट फोल्डर्स मेंटेन कर रहे हैं, रीजन वाइज, इवेंट वाइज और ईयर वाइज। सो वो हमारे लिए वही इनफ होते हैं, हमें हार्ड कॉपी की किसी भी किस्म के पिक्टोरियल एविडेंस की हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। जी नेक्स्ट वन, दीज आर द गेम्स। ये हमारे पास टोटल गेम्स हैं जो कि आपके सामने दी गई हैं, चैंपियनशिप के लिए कंसिडर हो रही हैं। प्लीज यहाँ पर इस चीज को आप कंसिडर कीजिएगा, दीज आर नॉट फॉर दिस ईयर, ये अभी के साल के लिए नहीं है, मैं ओवरऑल आपको पॉलिसी की बात बता रही हूँ that these are the 40 to 15 games which are going to be considered for championship whensoever है। ठीक है, इन्हीं के दरमियान में जोनल चैंपियनशिप होगी। जी there is a change, स्क्वॉश के बजाय इस साल हमने वॉलीबॉल इंट्रोड्यूस करवाया, और उसकी भी रीजन थी that from the regions we have received a query or concern कि हर रीजन के पास स्क्वॉश के कोर्ट्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब जोनल चैंपियनशिप होता था तो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स लाइक 11 कोर्ट लाइक पीएमए वहां के बच्चे एक्सेल कर जाते थे, उन्हीं की हर दफा पोजीशन आती थी, और बाकी रीजन्स के बच्चे either they do not participate or even if they participate they were not up to the mark, या वो उस कंपटीशन में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। सो स्क्वॉश विल रिमेन अ पार्ट ऑफ APSACS स्पोर्ट्स, लेकिन इंटर स्कूल लेवल तक आप उसको रख सकते हैं, not for the inter-regional and zonal championship. बच्चे जहां पर फैसिलिटी इनको अवेलेबल है, they should participate, they should keep on performing, they should keep on practicing the games, ताकि बोर्ड को कभी भी अगर जरूरत होती है तो हम उस पर्टिकुलर एरिया के बच्चों को स्क्वॉश में कंसीडर कर सकते। लेकिन फॉर्मली हम लोगों ने वॉलीबॉल इंट्रोड्यूस करवा दिया फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। पॉलिसी गाइडलाइंस के अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटीज, सिक्योरिटी फैसिलिटी और अकोमोडेशन फैसिलिटी से रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। पर दिस ईयर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए होस्ट स्कूल की रिस्पांसिबिलिटी होगी, जो भी इवेंट वो कंडक्ट कराएगा, कि मेडिकल और सिक्योरिटी से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज वो पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करें। अकोमोडेशन इस साल जरूरत नहीं होगी क्योंकि सिर्फ इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं, लेकिन अगर बोर्ड के लिए कहीं जरूरत होती है तो जो आपकी पार्टिसिपेटिंग जोन या फॉर्मेशन होगी, they are going to facilitate the students in terms of availability and booking of rooms and mess. APSACS आपको किन-किन फॉर्म्स में फैसिलिटेट करेगा? जी, we are going to share with you the trophy, medals, certificates and a token of appreciation for the winning coach and PTI. सेकेंड और थर्ड पोजीशन वालों के लिए मेडल्स और सर्टिफिकेट्स होंगे। The new development in this regard is कि पहले 3 साल बाद जो मुसलसल 3 कंसेक्टिव इवेंट्स जीता था ट्रॉफी उसको हैंड ओवर होती थी। However, from next session onwards, that is 2024 onwards, ट्रॉफी हर साल एनुअल बेसिस पर विनर जोन के हवाले कर दी जाए।
अब क्योंकि ये जोनल ट्रॉफी है और इसमें बहुत सारे रीजन्स पार्टिसिपेट करके एक टीम बनाते हैं, so the region with the maximum participant for students in a zone will get the trophy for the maximum time for display. ठीक है, जिसके कम होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली ही 1 महीना 2 महीना वो डिस्प्ले के लिए अपने पास रखेंगे, बट द ट्रॉफी विल गो टू द जोन फॉरएवर। ठीक है, वो उसी जोन की हो जाएगी और एनुअल बेसिस पे दी जाएगी। जी नेक्स्ट वन, coming towards the next main strand of APSACS sports program, which is the hockey. आपको मालूम है that in order to revive the national game or the passion for the national game, हमने हॉकी के रिवाइवल के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स अभी तक कंडक्ट करवाए हैं। जोनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर और इवन लोकल लेवल के ऊपर कुछ फ्रेंडली मैचेस भी हम कंडक्ट कराते रहे हैं। और ये इन्हीं बहुत सारी ट्रेनिंग कैंप्स के प्रैक्टिसेस का नतीजा था that for 2 consecutive years हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं और हमारी बच्चियां इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेनिंग्स के लिए गई हैं, वहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक दफा ईरान गई है, एक दफा ओमान गई है और वहां पर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी बनी है और उनको स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस। फिजिकल फिटनेस, दैट इज द पार्ट 5 और चैप्टर 5 ऑफ द पॉलिसी। यहाँ पर आपको तमाम इवेंट वो चीजें दी गई हैं, एक्टिविटीज बताई गई हैं, आपके साथ लिंक शेयर किए गए हैं जो आप बच्चों को ऑफ एंड ऑन इवन आप अपने स्पोर्ट्स पीरियड या जो आपका वीकेंड्स होते हैं वहां पर आप जब बच्चों को बुलाएं तो आप कंडक्ट करवा सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज, और उनकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई। सो एज एन पीटीआई और एज ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, जब भी आपके स्कूल में समर वेकेशन होती है, विंटर ब्रेक होती है, तो आप इसको इंश्योर करवाएं और इसका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करें, सो दैट जब भी इवैल्यूएशन टीम आपके पास आएगी वो इसका रिकॉर्ड आपके पास चेक करें। Coming towards another important thing, that is the APSACS biennial sports plan. Previously हम हर साल 15 गेम्स 14 गेम्स कराते थे, मगर अब with the latest amendment ये जो साइकिल है 15 गेम्स की या 14 गेम्स की, ये ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स इसको हम लोगों ने स्प्रेड ओवर कर दिया, जिसमें से हाफ गेम्स पहले साल में और हाफ गेम्स दूसरे साल में होंगी। कुछ इवेंट होंगे जो कि गर्ल्स एंड बॉयज के पहले साल में हो रहे होंगे और बाकी इवेंट्स दूसरे साल में होंगे, लेकिन ये चीजें इंटर रीजनल और इंटर जोनल लेवल पर होंगी। इंटर हाउस और इंटर स्कूल लेवल के ऊपर तमाम गेम्स 15 की 15 गेम्स आप कोशिश करें कि अपने स्कूल्स में या विद इन द इंटर स्कूल लेवल के ऊपर कंडक्ट करवाएं, ताकि बोर्ड को कोई भी इवेंट के लिए डाटा चाहिए हो तो आपके पास वो डाटा या आपके पास वो स्टूडेंट्स मौजूद हो। दे शुड बी इन प्रैक्टिस, वो इवेंट्स कंडक्ट कराते रहें आप, लेकिन चैंपियनशिप में क्योंकि बच्चों का सीनियर स्कूल के बच्चों का बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, बहुत huge amount of students are supposed to move and parents are not willing for this thing, तो हमने इसको 2 years में spread over कर दिया। लेकिन ये जो अब बाइनरी स्पोर्ट्स प्लान है वो इस साल के लिए नहीं है, इसको नोट कीजिएगा, इस साल के लिए सिर्फ 11 स्पोर्ट्स हो रही हैं और उसमें इंटर स्कूल लेवल तक ही सिर्फ जाएंगे आप। जी इसमें हमने आपको 5 और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी थी। जोनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे इंशाल्लाह अगले साल से, जो कि अपने जोन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी तमाम कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन APSACS के साथ इंश्योर कराएंगे। द बेस्ट जोनल कोऑर्डिनेटर विल बी अवॉर्डेड विद अ सर्टिफिकेट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेनिंग एट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल, जहां पर भी अवेलेबिलिटी हमें हो जाएगी। ट्रॉफीज बाइनल बेसिस के ऊपर, दैट इज पूरे राउंड में 15 ट्रॉफीज या 14 ट्रॉफीज जो हर गेम की बनेगी वो हैंडओवर की जाती रहेगी। साथ साथ एक्सटर्नल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए पार्टिसिपेशन या प्रिपरेशन स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी, हमें आप लूप में रखेंगे। जब भी कोई इवेंट होगा आप हमारे साथ डाटा शेयर करेंगे कि मेरा बच्चा इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, काइंडली इसको आने वाले इस इवेंट में आप फॉरवर्ड करें। सो हम फॉर्मली यहाँ से उसका डाटा उस इवेंट के लिए फॉरवर्ड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। किसी भी लेवल पर, फेडरल बोर्ड हो जाए, इंटर बोर्ड हो जाए, प्रोविंशियल, नेशनल, इंटरनेशनल या एशियन गेम्स वगैरह, किसी भी लेवल पर अगर आपका बच्चा पार्टिसिपेट भी करता है, इट्स नॉट अबाउट अचीवमेंट, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन। अगर आपका बच्चा पार्टिसिपेट भी करता है तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट में यू विल बी प्रोवाइडेड विद एडिशनल मार्क्स। सो एज अ पीटीआई, एज अ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, ट्राई टू मेक द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। ये उनके एक्सेल करने के लिए, उनके लाइफ में करियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। So coming towards this particular year's sports events, only following games will be held. Following 11 events will be held in every region at inter-school level. ये सारे के सारे फेडरल बोर्ड में भी कंडक्ट कराए जाएंगे। जी दिस इज द स्लॉट। आप एकेडमिक कैलेंडर देखें तो डिफरेंट स्लॉट्स हैव ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड और इन्हीं के अकॉर्डिंगली विद माइनर एडजस्टमेंट, दैट इज इफ रिक्वायर्ड,
आप कंडक्ट करवा सकते जी। Reduced sports plan is applicable for session 23-24 only. Regular sports plan will be implemented from next session and onwards. Coming towards the federal board events, this notification has already been shared with all of you through your RD. इसमें अगर आप देखें तो अक्टूबर में गर्ल्स का और बॉयज का इंटर डायरेक्टरेट इंटर कॉलेजिएट लेवल के ऊपर टेनिस और बैडमिंटन के कॉम्पिटिशन आ रहे हैं। So for this, अगर अक्टूबर में इवेंट है तो इसका मतलब सितंबर तक योर्स the year और across the country हमारे स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं। अगर मैं टेबल टेनिस का लास्ट ईयर का रिजल्ट देखूं तो जरूरी नहीं है कि वो रावलपिंडी के बच्चों ने जोनल चैंपियनशिप जीती हो। दैट मे बी फ्रॉम सरगोदा, दैट मे बी फ्रॉम कराची, दैट मे बी फ्रॉम कश्मीर। सो अगर ये बच्चे एपसेक्स में जोनल चैंपियनशिप जीत सकते हैं तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द फेडरल बोर्ड कॉम्पिटिशंस। सो आई वांट टू हैव अ डाटा, आई नीड टू हैव अ डाटा फ्रॉम ऑल द रीजन्स रिगार्डिंग दीज गेम्स। फिर हम अपने बेस्ट बच्चे का डाटा फेडरल बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे और ताकि उसकी पार्टिसिपेशन और उसको एवेन्यूज प्रोवाइड किए जा सके कि वो नेशनल लेवल पर। फेडरल बोर्ड का मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे फेडरल बोर्ड में प्रीवियसली ये होता है कि वहां पर जो स्कूल रजिस्ट्रेशन करवा लेता था वो जाकर गेम खेल सकता था। मगर दिस ईयर अभी हमारी स्पोर्ट्स की मीटिंग हुई है, उसमें फेडरल बोर्ड ने ये चीज आगे फॉरवर्ड की है या उनका एक प्रपोजल उन्होंने दिया है कि पूरे डायरेक्टरेट की तरफ से एक ही टीम फॉरवर्ड हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर टेबल टेनिस में टोटल 15 डायरेक्टरेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, एफजी की डायरेक्टरेट है, एपसेक्स की डायरेक्टरेट है, बहरिया की डायरेक्टरेट है, पीएफ की डायरेक्टरेट है। सो हर डायरेक्टरेट की एक ही टीम आए और वो खेले डायरेक्टरेट्स आपस में इंटर डायरेक्टरेट लेवल के ऊपर कॉम्पिटिशंस हो। सो अब ये होगा कि हमने अगर एपसेक्स में टेबल टेनिस में बच्चे फॉरवर्ड करने हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन वो जहां से भी हो द बेस्ट बच्चा विल गो टू द फेडरल बोर्ड और डाटा थ्रू एपसेक्स फॉरवर्ड होगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्केड्यूल को सामने रखते हुए अगर अक्टूबर में नॉमिनेशन चाहिए होंगी तो आप सितंबर में हमारे साथ अपना डाटा शेयर करें और नवंबर के लिए अक्टूबर में आपका डाटा, आपके इवेंट्स का रिजल्ट हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। सिमिलरली टग ऑफ वॉर एथलेटिक्स दिसंबर और जनवरी में होने, सो वो भी आप कोशिश करें कि आप बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या अक्टूबर में along with the netball, volleyball, basketball, cricket and hockey हमारे साथ एथलेटिक्स और टग ऑफ वॉर का डाटा भी शेयर कर दें ताकि हम उनकी कंपाइलेशन के बाद बोर्ड को बच्चों के नाम फॉरवर्ड कर दें, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाए, उनके एकेडमिक्स भी इफेक्ट ना हो, पेरेंटल कंसेंट हम टाइम पर मंगवा लें और बच्चे टाइमली उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करके एक्सेल कर सकें। These are the 3 events जो कि बोर्ड नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको टेकअप करने के बारे में सोच रहा है। उनमें से पहला यूरोपियन कप है जो कि 2023 का है और सितंबर में एक्सपेक्टेड है। इस साल बोर्ड इस यूरोपियन कप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाउएवर उन्होंने हमें मीटिंग में ये बता दिया है कि 2024 में दे विल बी पार्ट ऑफ दिस यूरोपियन कप फॉर फुटबॉल एंड कैचबॉल और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। सो नेक्स्ट ईयर के इसको आप अपना वे फॉरवर्ड रखें, हम भी इंशाल्लाह इवेंट्स अगले साल के इसमें करवाएंगे ताकि टाइमली हमारा बच्चा बोर्ड में सिलेक्ट हो और वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म करे। कराची में भी इस साल सितंबर में इवेंट्स हैं मगर इस साल नहीं, मगर इंशाल्लाह अगले साल ओलंपिक गेम्स के अंदर भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। एशियन ओलंपिक्स जो कि मलेशिया में इस साल कंडक्ट कराई जाएंगे इन दिसंबर, जब अभी आप एथलेटिक कॉम्पिटिशंस करवाएंगे और इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन करवाएंगे और उनमें से सिलेक्टेड बच्चा फेडरल बोर्ड में जाएगा, वो बच्चा एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल बोर्ड, क्योंकि फेडरल बोर्ड अपनी टीम लेकर जाएगा और अगर हमारे बच्चे अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं या विनिंग पार्ट पर आते हैं तो दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एशियन गेम्स ऑन द बिहाफ ऑफ APSACS फेडरल बोर्ड। सो दैट विल बी अनदर
अचीवमेंट फॉर अस अगर हमारा कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। सो अपने इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन को रिलीजियसली कंडक्ट करवाएं, इसको तरीके से करें ताकि आपके बच्चे जो उनको अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है वहां तक उनकी रसाई हो सके। जो भी आपको गेम्स बताई हैं, इसके अलावा बोर्ड इंटेंट करता है 4 और तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाने का, जिसमें स्विमिंग भी शामिल है, साइकिलिंग शामिल है, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स भी शामिल है। सो अगर आप अपने लेवल पर आपके बच्चे हैं जो कि साइकिलिंग में आर वेरी गुड, यू हैव गॉट अ स्टूडेंट हु हैज बीन participating in different marathons at local level or regional level. So अगर ऐसा भी कोई बच्चा है आपके पास या बच्चे हैं आपके पास, उनका डाटा जरूर एग्जाम डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें, ताकि जब भी बोर्ड को, फेडरल बोर्ड को या किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो हम आपके बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज या प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, so based on the inter-school sports competition, best players from each region to be shared with the federal board for the above mentioned games. Instructions for board competitions will be shared very soon with you. जैसे ही बोर्ड कोई नया नोटिफिकेशन निकालेगा हम आपके साथ ये डाटा शेयर कर देंगे ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपना डाटा स्कूल्स में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में कंपाइल करते रहें और हमें अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करें। Another very important thing to be discussed with you, that is the disciplinary action to be taken. आपको मालूम है कि बोर्ड के इवेंट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो एक बहुत ग्लेयरिंग इशू हमेशा सामने आता है, which is the age limit of a child. हर साल एज के ऊपर आकर इश्यूज क्रिएट होते हैं, बहुत सारी फाइट्स भी होती हैं। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट हुआ था केस जिसमें 22 years old स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द साइकिलिंग कॉम्पिटिशन और डिफरेंट स्कूलों के दरमियान लड़ाई के बाद उसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया था। हाउएवर इस साल बोर्ड ने अपने रूल्स को अमेंड कर दिया और उनके अकॉर्डिंगली कोई भी बच्चा जो एसएससी या एचएसएससी लेवल पर फेडरल बोर्ड में रजिस्टर है, उसकी कोई भी एज है, चाहे वो 14 इयर्स का है चाहे वो 25 इयर्स का, अगर वो उसके पास बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो फॉर्मली उस साल बोर्ड के एग्जाम्स में अपेयर होने जा रहा है, he or she is eligible to participate in the बोर्ड कॉम्पिटिशन, बोर्ड के स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन में वो एलिजिबल है। उसकी उन्होंने सिर्फ एक दी थी जस्टिफिकेशन कि अगर हम एग्जाम्स में, एकेडमिक्स में हम एज को कंसिडर नहीं करते और बच्चा 4 साल बाद भी अगर रिपीट करके उसको इम्प्रूव करना चाहता है और उसके पास ये ऑप्शन है तो व्हाई नॉट फॉर द गेम्स। गेम्स बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए है, उसको हम कन्फाइंड नहीं कर सकते एज के साथ या एज की बेस के ऊपर हम उसके लिए अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दूं कि बोर्ड में एसएससी लेवल के इवेंट्स अलग होते हैं, एचएसएससी लेवल के इवेंट्स अलग होते हैं। एसएससी लेवल पे के इवेंट्स को हम इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स कंपटीशन कहते हैं और एचएसएससी लेवल के इवेंट्स को हम इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स कंपटीशन। सो उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं और वो जहां पर रजिस्ट्रेशन हुई होगी उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चा पार्टिसिपेट करे। सो अगर आप ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपका बच्चा एज में जो भी एज हो, अगर वो बोर्ड में रजिस्टर है तो वो आपके बिहाफ पे स्पोर्ट्स में जाकर खेल सकता है, लेकिन कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि पोजीशन लेने की खातिर आप बच्चे को हायर कर लें, वो किसी और सिस्टम का बच्चा हो, किसी और स्ट्रीम का बच्चा हो और आप उसको अपनी तरफ से अपेयर करवा दें। इन दैट केस लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द स्कूल और द डायरेक्टरेट गोइंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और उनके खिलाफ 1 year proper prohibition in any type of participation in any sports at any level, ये भी उनके खिलाफ एक एक्शन ले लिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। जी, जब भी आप किसी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करने जाएं, प्लीज इंश्योर दैट योर स्टूडेंट्स आर वेयरिंग द APSACS कलर किट और वहां पर वो APSACS को रिप्रेजेंट करें। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि फेडरल बोर्ड लेवल के ऊपर पार्टिसिपेंट्स या टीम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर, नेक्स्ट पेज, they are the student school identity card, federal board registration card, उसकी फर्स्ट टर्म की या प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन की मार्कशीट और प्रोग्रेस रिपोर्ट, and the most important part, parental consent form. Please do not force any child to participate in a particular game. अगर उसके पेरेंट्स या बच्चा विलिंग नहीं है, उसे फोर्सफुली मत किसी स्पोर्ट के अंदर करें आप। रीजन बीइंग अगर उसकी एकेडमिक्स इफेक्ट हो जाती हैं तो पेरेंट्स फिर आपको देंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये 4-5 चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जाएंगे एक्सटर्नल इवेंट पे पार्टिसिपेट करने तो वहाँ वेरिफिकेशन टीम्स या कमेटीज बैठी हुई होती हैं जो बच्चों के इन 4 डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं
और अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हो तो आपका प्लेयर या आपकी टीम मैच नहीं खेल सकेगी, वहां आप डिस्क्वालीफाइड। ऑल एक्सपेंसेस, ये हमसे बोर्ड ने बात की है, ऑल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कराची का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है बोर्ड के कंपटीशन में, सो उसकी बोर्डिंग, लॉजिंग और उसकी ट्रैवलिंग बोर्ड बेयर करेगा, फेडरल बोर्ड बेयर करेगा। और अगर किसी तरह की कोई लैप्स आ जाता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो APSACS इज ऑलवेज देयर। हम ऐसे बच्चे को सपोर्ट करेंगे इफ ही और शी इज एलिजिबल। वो अपना टैलेंट, बहुत टैलेंटेड बच्चा है और वो किसी नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट दैट चाइल्ड एज वेल। पोस्ट इवेंट रिपोर्ट एंड पिक्टोरियल एविडेंसेस ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एज अ PTI you are supposed to compile all these things and you are going to share all these things with the secretariat as and when required and directed. Now each RD to select and recommend a student for the board competition and share the data of all those who are willing to participate. But remember, a fair and justified selection should be done at your end. Please don't get biased. किसी unfair mean के जरिए बच्चे को आगे forward ना कराएं, because it is not for you people only. It is at the stake of APSACS repo as well. पूरे डायरेक्टरेट की रिप्रेजेंटेशन होती है फेडरल बोर्ड में। सो जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो जस्टिफाइड बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। जब भी आपको इवेंट करें, चाहे वो आपका इंटर स्कूल लेवल हो, जोनल चैंपियनशिप हो या किसी एक्सटर्नल कंपटीशन में आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑलवेज इंश्योर दीज 5 टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स। Number 1, the whole sports ceremony. Number 2, the chief guest, whosoever is that. 10 pictures during the activity or the match that is being held. Prize distribution ceremony, जब आपके बच्चे को प्राइज दिया जा रहा हो. And the video of the final moment or winning moment, जहां पर स्पेशली जहां पर आपका बच्चा एक्सटर्नल कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, क्योंकि हमारे पास पूरी गैलरी मेंटेन हो रही होती है एंड इट इज अ प्राइड मोमेंट फॉर द होल डायरेक्टरेट, होल सिस्टम। हम चाहते हैं कि वो मोमेंट्स हम तमाम लोगों के साथ शेयर करें थ्रू आवर सोशल मीडिया और थ्रू द प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल। वो हमारे मेन वेबसाइट्स का हिस्सा है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। होपफुली जो आज मैंने आपको चीजें की हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, you are requested to please unmute your mic and start asking the question one by one. Ji. Zahir Shair, APS Dargai. Please unmute your mic and share your query. Zafar Shahid, APS Dargai. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। क्योंकि हम चैट बॉक्स में, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम चैट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चंस को देखकर उसको भी आंसर कर देंगे, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द चैट बॉक्स। We don't have any question in the chat box so far. हमारे पास फिलहाल कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। सो आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू। जो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जो चीजें हमने आपके साथ शेयर की थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद भी नेक्स्ट आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन होता है, आपको लगता है ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, पॉलिसी में ये गाइडलाइंस मौजूद नहीं है, तो यू आर ऑलवेज requested to write that thing to your RD, and RDs are requested to share the queries of their regional sports coordinators or PTIs with us, और हम उनका फॉर्मल आंसर आपको थ्रू ईमेल हमेशा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे हमने पॉलिसी बनाई है, जो गाइडलाइंस हमने आपके साथ शेयर की हैं, उसको अकॉर्डिंगली आप अपने रीजन्स में इम्प्लीमेंट करें, उसको इंश्योर करवाएं, ताकि जब हम इवैल्यूएशन पे आए तो हमें भी उतनी ही खुशी हो देखकर जितनी खुशी हमें ये चीजें आपके साथ बनाने के बाद शेयर करते हुए होती है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।